Yes. So, Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the first session of Gen AI Fellowship. I'm really excited. And today we have Sir Numan with us. He was previously mentor of Teens in AI. I remember him during those times, and where he guided participants on AI ethics and served as a subject matter experts, where he taught us about SDGs. And his insights were pretty useful and pretty valuable. And I'm really glad that we have him again. So thank you so much for joining in, sir. Over to you, and we may start. Thank you very much, everyone. First of all, it's again a great pleasure to host a lot of young future of Pakistan. Um, I'll introduce myself a little bit, and then probably how many are there, Musfira, if I'm not wrong here? Like We about have 10, 12? 29 right now. We have 20. 29 right 29. now, So but more to it's a join. Yeah. okay. So I would have liked that this is a bigger number, so I cannot ask one by one, but it would have been nice that like the children who are here, maybe on a chat, let me know that what are your backgrounds? Just one line, what do you do? Which school do you go to? Or college or university? So I will just go read through the background and everything, and then what is your motivation as well? So So it whilst they're typing, well, Numan, let yeah, me yeah, let me give you a little bit of background sure. again. So So we are reconnecting right after the orientation. So this is the first session of the Gen AI Fellowship. The sure. fellowship program has been designed keeping in mind out of classroom, what is it? What are the topic areas that the new generation should be learning? Where are their job opportunities in terms of thinking not only outside of the box, but even in the technological domain? Where is it Mm, that our youngsters between the ages, starting off from 16 years to up to 22, 23 years old, where is it that they can shape their careers? And the whole goal of the fellowship was कि आप बिल्कुल technically बहुत strong हो जाते हैं, but what is it where you are delivering a service to the wider community? That जी, missing जी. link is something what the fellowship needs to ascertain and link up. So we have fellows from all across Pakistan, which is a huge feature. These people who are here, who have been selected, shortlisted, they are coming after applications that we received in the thousands. They were shortlisted. Okay. A few were invited over for interviews. Their passion for artificial intelligence and learning new things and talking about social uplift was assessed. And then these shortlisted ones are the fellows who are going to go into this 4 weekly virtual internship fellowship, and they are going to build up their portfolios by weekly tasks. So the first session is where we are aligning the sustainable development goals to artificial intelligence. And I know that, you have tons and tons of experience in this particular field. So that's why you have the first session with them. And hopefully, inshallah, once they're at the tail end, when they're doing their pitch decks, you'd come again back as a judges. So that's the background. So there are people here with not a lot of coding background and technology background, which is great. And they've been brave enough to say it that, yes, this is an area that we don't know of. Some are coming with um, medium to more advanced level knowledge around artificial intelligence and generative AI. So it's a mix, and that is what we want to encourage, which is the peer learning bit as well. There's some here who have knowledge about sustainable development goals and some who don't. And they've been brave enough to voice that in the orientation as well. So that's just a little bit overview of the wonderful people that we have: Taha, Prakurat, Rushpa, Hassan, Zena, and there are more names. There are around 34 of them now. So over to you, Naman. Thank you very much, Noor. Thank you, thank you. The reason was the exact reason for me was as well. It's like good to know that what background. Like last time when I did the sessions on the IWD WD Hackathon, so I asked everybody, okay, what they're looking for and how much they know about certain things. So
provided I would know that you guys are just fresh, everybody here. So obviously I'd start with the Sustainable Development Goals. I'll just go with a small brief on that. And the rest would be going into the AI domain and what do I do rather than I introduce myself. So just 1 minute, I will do 1 minute introduction that I've actually been working internationally and into Pakistan for different organizations. My career goes from retail fashion to working in an embassy in Pakistan. Then I worked in retail fashion internationally in Dubai with 5 multi-concept fashion brands. I was working in Dubai Mall and I was retail head. Then I moved to Pakistan after the COVID, where I started working in some sustainable development organizations in Pakistan, which was a management consultancy firm. I worked a year plus there, and then I started working for NHS UK, remote jobs, different projects I've been doing. And within that project, I was doing AI healthcare, robotic process automation, and AI healthcare solutions for the NHS healthcare providers over there. Also, on parallel, I've been doing from last year and a half, AI and blockchain-based sustainability reporting solutions. We call them ESG reporting solutions. So those are also based on AI and how they work and leverage. Probably if there is a further session, I can go into details, but I will delve into that a little bit as well through my slides. Sustainable Development Goals are actually being set according to the United Nations certain platform on development of human index. It's just not that sustainability or environment related. It's related into every facet of the life, and wherever people are not, they're how do you say it properly is that if they are not getting a little bit of opportunity to grow, so these goals let them develop much better. If it's like women empowerment, it's healthcare, or it's anything beyond that, education, equality at workplaces, in the countries. So I would then on my next slide, try to push this. So over here, you can see that we have 17 of them. Number 1 is no poverty. Number 2 is zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitization, affordable and clean energy on the number 7, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced equality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, and peace, justice, and strong institutions. Last but not least, partnerships for the goals as well. So these are quite complex organizations. You can see here, they have their own symbolizations as well. They have their own logos. Each logo has a in-depth industry knowledge, and a lot of people are working on these things as well. So I hope everybody is clear about this. Obviously, my concern would be like building a healthier future AI and with SDGs, so how do we do this is by understanding the system. What is the AI's transformative role? It's saying it's giving the introduction, all these things in the coming slides. So obviously this is just so what are the SDGs? Okay. So for us, UN SDGs means is like it was set for 2015 to 2030. So they said like this will be targeting poverty, the other 17 as well, but health, climate, and equality. Why they matter actually? So it's a blueprint. So if you know what your goal is, so you can much better. It's just like an example of if a pilot of a plane doesn't know where to land, he would keep on flying to unknown destinations. So that doesn't. So one has to have a direction. So this gives the direction. There are 17 points, and we need to focus on them. And everybody goes into micro and macro level of introduction here. Is it okay to Noor? If sorry to ask you this question, is it okay to speak in Urdu as well, or absolutely, absolutely bilingual, बिल्कुल comfortable. कोई international भी मैं इंग्लिश में बोलता रहा, बाद में पता चला उर्दू भी चल रही थी, लोग बोल रहे थे. नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी. So wherever I feel like it's easy to explain, I'd go to why they matter is the blueprint for global resilience. Obviously, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान में हम किन दिनों से गुजर रहे हैं, how the climate emergency is affecting all of us. So अगर हम लोग कुछ
एक फॉर्मेट, एक मैप, एक गोल की तरफ और एक ब्लूप्रिंट की तरफ अगर हम फोकस करें, आप अपने जिस तरह आप लोग अपने करियर को बनाने के लिए एक पाथ को फॉलो करते हो, सिमिलरली अगर पीपल वर्क इन टुवर्ड्स अ गोल एंड कॉमन एफर्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स निकलने का चांस होता है। तो फोकस SDG 3 है जो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग टाइज टू AI इनोवेशन, जो जिसमें मैं काम करता हूँ। ठीक है, विजुअल्स जो से हैं वो आइकॉन्स ऑफ SDGs 3, 7, 13, I'll go back to my back slides, 3, 7 and 13. You can see affordable and clean energy, good health and well-being and climate action. So ये चीज़ें मिला के जो से इनके आइकॉन्स आप देख लीजिए कि ये किस तरह की चीज़ों के साथ इम्पैक्ट करते हैं, इनके आइकॉन्स क्या हैं। तो अब नेक्स्ट रोल में जाऊँगा, AI का क्या रोल है एक्सेलरेशन पे SDGs की। AI इज एक कैटलिस्ट होता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकता है, फोरकास्ट कर सकता है डिजीज आउटब्रेक्स को। अगर एक पैटर्न चल रहा है और एक हेल्थ केयर का डेटा उसके पास है और वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आपको बेसिकली ये प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि यार बी केयरफुल, you might be heading towards a calamity of like a COVID, और आपकी कोई भी इस तरह की आउटब्रेक डिजीज निकल सकती है। Efficiency optimization, reduce waste in healthcare resources, ये SDG का 12वां गोल है। क्लाइमेट एक्शन में क्या है, एक ये चीज़ आ जाती है, AI ड्रिवन कार्बन अकाउंटिंग भी आती है, वो मेरी भी इंडस्ट्री है, मैं उसमें काम करता हूँ। ये बेसिकली आपके ओवरऑल एनालिसिस को बताता है कि आपके पास अगर एक डेटा है विच टेल्स यू कि आपने कितनी कार्बन एमिशंस किए, उसके रोबस्ट तरीके से कैलकुलेट करके आपको आपकी कार्बन एमिशंस के रिपोर्ट दे देता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ GHG एमिशंस, देयर आर कार्बन एमिशंस, देयर आर मल्टीपल गैसेस। तो वो एक सर्टेन डिफरेंट टॉपिक है। वो उसमें आप ये देख सकते हो कि आपकी बेसिकली टोटल कार्बन एमिशंस कितनी है और आप कितने किस लेवल पे हो अपने क्लाइमेट इम्पैक्ट करने के। तो इसमें बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये रेटिंग्स होती हैं, ESG रिपोर्ट्स होती हैं और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपकी फंडिंग की जाती है। अगर आप अच्छे अपने क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रहे हो, आप अगर ज़्यादा सस्टेनेबल हो, तो आपको एक रेटिंग नंबर अच्छा मिलेगा, आपको लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि आप सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। वो बेसिकली मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड आर नाउ क्लाइमेट, बेसिकली उनका ज़्यादा ये होता है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या वो किसी ऐसे काम में हिस्सा ना लें जिसमें प्लानट को इफेक्ट किया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें स्पेशली इवन आपकी सोशल और गवर्नेंस लेवल पे भी चीज़ें काउंट होती हैं। तो फिर ये होता है कि जो AI का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि लोगों को, जब मेरे जो एक्सपीरियंस में जब UK में काम करता हूँ, तो पीपल आर having a lot of reports to make manually. They have to figure out different codes, they have to do admin reporting, they have to do financial reporting, जिस तरह bills होते हैं, मल्टीपल रोल्स, और वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर की वजह से उनके ऊपर, स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो उस लोड की वजह से देयर कुड बी एरर्स, एंड उस एरर से इट कुड बी डेटा ब्रीच और इट कुड बी रॉन्ग रिपोर्टिंग। सो उसको ये मेक श्योर करता है कि AI बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू आप उसको सर्टेन कमांड्स दे देते हैं, और वो कमांड्स के साथ उसके टॉप पे आप एक AI की ब्रेन लगा देते हैं। तो व्हाट विल हैपन इज द ब्रेन वर्क्स and notices what you're doing, and after a while it makes some analysis and tells you okay this data is correct or not. तो वो आपकी बहुत ज़्यादा लोगों के काम को वो खुद ही ऑटोमेट करके, मतलब अगर 1000 रिपोर्ट्स किसी ने जनरेट करनी है या उसको प्रोसेस करना है, तो वो 1 घंटे में कर देगा, वर्सेस a human being will take maybe 1 week or 2 weeks to do that, or maybe like on time difference आप उसको 80, मतलब अगर 100 मिनट लगते हैं तो वो 20 मिनट्स में काम हो जाएगा। तो 80% वर्क रिडक्शन का भी इसमें चांस होता है। एक तो एरर्स की एविडेंस अवॉइडेंस हो जाती है, एंड द अदर थिंग इज, और ये बेसिकली आपकी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ लेके जाता है आपको। बेसिकली जितना काम होगा कम, जितना प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से उतना बेहतर हो जाएगा काम की क्वालिटी, और हेल्थ केयर पे भी इफेक्ट होगा, लोगों की सर्विस भी अच्छी होगी, और जिन जो इफेक्टिव होंगे हेल्थ केयर को, बेसिकली जिनको डॉक्टर के पास जाना है, उनको भी अच्छी उनकी रिपोर्ट्स जल्दी मिलनी शुरू हो जाएंगी, ताकि उनकी भी अच्छे डायग्नोस्टिक्स आगे कैरी ऑन हो सके। फिर फर्दर केस स्टडीज़ हैं जो हेल्थ केयर, जो मेरा काम है ऑब्वियसली इनएफिशिएंट UK हेल्थ केयर सिस्टम्स है, जो मैं पहले बोल चुका था। AI RPA सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगेन RPA मींस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसको मैं इजीली एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ये बॉट बना हुआ है, तो बॉट का हेड जो है वो AI है, और उसकी बाकी बॉडी जो है वो बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। आप उसको गाइड करते हो, वो जो आपकी ब्रेन आपको मैसेज करती है, वो बॉट उसको उस तरह रन करता है।
इसका ऑटोमेट्स पेशेंट स्केजुलिंग डेटा मैनेजमेंट में इस तरह आपकी रिपीट प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो कि किसी की आपने बार बार प्रिस्क्रिप्शन सेम पेशेंट्स की हर 3 महीने बाद इशू करनी है, किसी को आपने रेफरल करना है, अगर 1000 रेफरल्स हैं उनको जल्दी जल्दी ये प्रोसेस कर देगा, सिर्फ एक साइन करना या एक बंदा उसको फाइनली क्लिनिकल उनको डॉक्टर बैठ के या कोई नर्स सीनियर नर्स बैठ के उसको देख के प्रोसेस कर देगा। तो ये चीज़ें ऑटोमेट करके बहुत सारे TDS टास्क जो से होते हैं या जो बिजी रखने वाली चीज़ें होती हैं वो लोग जो हैं उससे जान छुड़ा के हेल्थ केयर की तरफ फोकस कर सकते हैं। ये नॉर्मल फैक्टर है, लोग ये बोलते हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि जो AI यूज़ करेंगे, जब AI आ जाएगा तो जॉब्स चली जाएंगी। मेरा उसके बारे में ये ओपिनियन है कि जो लोग AI को लेवरेज अच्छे तरीके से कर लेंगे उनकी जॉब्स बच जाएंगी, और जो लोग AI को नहीं समझ पाएंगे या थोड़े दुनिया में टेक्नोलॉजी से पीछे रहेंगे, so they will be practically and operationally out of their jobs very quickly. तो जो लोग जितनी जल्दी अपनी चीज़ों को लेवरेज कर सकते हैं थ्रू AI, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को उनको उतना जल्दी फ़ायदा होता है। अब जैसे ये कहते हैं कि आप बच्चे हो, आप पढ़ रहे हो, आप अपनी चीज़ें ऑटोमेट करके ChatGPT पे, डीप सीक पे डिफरेंट एनालिसिस ले सकते हैं। मुझे उसकी प्लस साइड ये लगती है कि मैं कुछ चीज़ें तो बहुत जल्दी कर सकता हूँ अपने टास्क की, वो इट हेल्प्स मी क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी इजीली, बट द अदर थिंग इज मुझे उसका एनालिसिस पढ़ते हुए मुझे बहुत दुनिया की रेयर इन्फॉर्मेशन एक पेज के ऊपर बहुत जल्दी मिल जाती है। आई गिव इट द राइट प्रॉम्प्ट एंड इट गिव्स मी द राइट इन्फॉर्मेशन, आई एब्जॉर्ब एंड आई बिकम अ बेटर प्रोफेशनल एट इट। तो ये चीज़ों का हेल्प होता है कि जो चीज़ें आप सालों साल में सीखते थे अब आप दिनों में सीख सकते हो। दैट गिव्स यू द एज ओवर ऑल दीज थिंग्स, रादर देन आप सिर्फ उसकी वो जो बोल रहे हैं उसको बस किसी जगह पेस्ट करके किसी को दिखा दिया। इट डजंट हेल्प दैट वे, यू हैव टू लर्न व्हाट इट इज डूइंग एज वेल। तो इम्पैक्ट अब ऑब्वियसली देख लीजिए कि इमरजेंसी रिस्पांस जल्दी हो जाता है इसमें हेल्थ केयर में, वो पहले भी बात, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ भी होंगी। जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपकी अगर हेल्थ केयर में अगर फास्ट लोग ट्रैक करेंगे, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी डिलेज होती हैं, लोगों को बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, मेडिकेशंस में बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, कई जगहों पे आपको फार्मेसी पे खड़े हुए, तो अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर इनसाइड में ज़्यादा तेज़ काम करेगी तो रिजल्ट्स भी जल्दी निकलेंगे। और उसमें फिर ये होगा कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे दे कैन बी डूइंग सम अदर टास्क एज वेल। अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स और हेल्थ केयर डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने में लगे हुए हैं तो उनका उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पे मैन पावर शॉर्ट होती है, और उस शॉर्ट मैन पावर की वजह से लॉट ऑफ पीपल हैव टू डू अ लॉट ऑफ जॉब्स व्हिच आर नॉट देयर जॉब्स। तो वो ये AI उन चीज़ों को आपके लिए बेहतर सोल्यूशंस पे लेके आता है। AI ड्रिवन ESG एंड कार्बन इनोवेशन, अब मेरा एक जो जॉब है वो बेसिकली ESG एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस AI ड्रिवन करते हैं, और कार्बन इनोवेशन हम काम करते हैं उस पर। उसमें हमारा टेक स्टैक ये है कि ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन बेसिकली आपका रिकॉर्ड मेंटेनेंस करता है कि वो इट ट्रैक्स वट एवर यू हैव एंटर्ड, जो भी कोई बंदा कहीं पे भी काम करेगा वो बता देगा कि इस यूज़र ID से इस मशीन से ये टाइम पे ये रिपोर्ट के ऊपर ये डेटा को एडिट किया गया। और उसके साथ में AI आ जाता है ट्रांसपेरेंट ESG रिपोर्टिंग के साथ, कार्बन फुटप्रिंट भी उसमें आ जाता है, उसके एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, आप उसकी सप्लाई चेन के ऊपर नज़र रख सकते हैं, विच इज़ ट्रैकिंग। और इसकी वजह से इसका फ़ायदा क्या होता है, आउटकम क्या होती है कि रियल टाइम कंप्लायंस विद SDGs, इंडस्ट्री इनोवेशन, आपकी हर इंडस्ट्री में अगर इनोवेशन होगी तो आपकी वो इंडस्ट्री जो सी प्रॉस्पर करेगी। देन 13 क्लाइमेट एक्शन, ऑब्वियसली आपकी क्लाइमेट एक्शन पे इसका हेल्प होता है आजकल। अब फिर अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, आई सी अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ एनवायरमेंटल में। जब मैं और नूर कब से काम कर रहे थे, अब मैं कुछ टाइम से थोड़ा सा साइड लाइन हुआ हुआ इस इंडस्ट्री से। मुझे वंस इन अ मंथ आई गो इनटू दिस सब्जेक्ट, हाउएवर मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं है, मेरा हेल्थ केयर पे दूसरी साइड पे ज़्यादा काम है, बट एनवायरमेंटल जो काम है आई फील रियली, मैं नूर सुन रही होंगी तो आई एम गिविंग द आइडिया, हमने पहले भी बात की थी कि वी नीड टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम ग्रास रूट ऑन दिस सब्जेक्ट एज वेल, ताकि लोगों को बताया जाए कि आप ये जो अब जिस तरह के अब सोसाइटी सोशल वो जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं और उसमें इतना बड़े पानियों के फ्लड्स आ रहे हैं और ये ओवरटेक हो रही हैं वहाँ पे livelihoods of people, and even people are getting swept away from the flood. ये चीज़ें बेसिकली इट इज़, अब मैं जहाँ पे रहता हूँ अब उसकी साइंटिफिक रीजंस ये है कि वी लिव इन बिटवीन द स्मॉल माउंटेन्स, ये पुराने माउंटेन्स थे, ये जंगल था, उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन करके यहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी गई। उनके वो पहाड़ों के जो बीच में जो जगह छोटे छोटे पहाड़ हैं, वो उनके बीच में जो जगह जब वो पहाड़ से पानी स्लोप में आता है तो वो एक स्ट्रीट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जितने छोटे छोटे पहाड़ों का पानी है वो, और उसके वो इवन क्या कहते हैं लैंड स्लाइडिंग भी होती है, वो दरख्त काटने की वजह से वो पानी उसके ऊपर से तेजी से गुजरता है। Noman, यस मैम। I just wanted to add in because this is exactly what you have highlighted, जो कि हमारा जो आप grassroots की बात कर रहे थे, so one of the things
which I was telling the fellows in the first orientation session was कि बहुत बड़ा नहीं सोचना, पहले एट द ग्रास रूट्स लेवल इतने ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग एंड आई वाज टेलिंग मुस्फरा ऑफलाइन that I didn't even discuss with Sir Numan what the first task is, but I think this is the right time where I should chime in and echo what you're trying to say, ताकि जो learning curve है वो बिल्कुल establish हो जाए सारे fellows के दिमाग में कि जो पहला टास्क है हमारा नुमान, वो एग्जैक्टली वही है जो कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन हेल्थ एंड वेलबींग. सो हमारा जो फोकस है एक एसटीजी के ऊपर, वो हम एक ऐसी मॉक एक्सरसाइज करेंगे विद द फर्स्ट टास्क विच इज टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज कि हमारे पास सिर्फ हेल्थ में जो आप बात कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में वाकई कोई ऐसा अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, वाकई इतने वेट टाइम्स हैं, वाकई इमरजेंसी रिस्पॉन्स बहुत पुअर है, वाकई फॉलो अप मेडिकेशन का नहीं होता और कहीं जाने उस तरीके से जाती हैं. I was telling them the example of incubation services नहीं है. बच्चे इन्फेंट्स प्री चाइल्ड मोर्टेलिटी जो होती है उसके ऊपर ये वो बातें हैं in which you don't need to be a technical expert, you just need to be a human and an observant 16, 17, 18-year-old who is looking at these things, observing them live और फिर उसको assess करके आप एक solution निकाल सकते हैं. So I'm so glad that you've automatically taken everybody to that, and we didn't even discuss this, we didn't even share notes, but I guess that what comes working together, but please carry on. And this is exactly the area where we want to show them real examples of what is happening around us, especially अगर आप flash floods ले लें उसके बाद health का क्या एक impact आएगा. Please do speak about that as well, and how can they use the RPM models or what you're showing them in such a nice way. It's really exciting. So please carry on. Thank you. Thank you very much. Guys, can you hear me clearly? Some people said, can you speak up? मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा था, मेरी आवाज ऊंची है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप बिल्कुल ऊंचा बोलें because आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी लो जाती है, तो it's better कि if you can अच्छा speak your normal pitch. मैं ये करता हूँ कि मैं अपना वीडियो, probably it might be my internet, so मेरा No, the internet is fine. Just pull your headphone a bit closer. ठीक है, मेरे बिल्कुल मुंह के साथ है, but it's fine, मैं कर लेता हूँ. तो can you hear me properly? अभी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरी बेहतर हुई है आवाज पहले से, फिर मैं स्टार्ट करूँ. नूर? Yes, it's perfectly fine, but बाकी सब बता दें, use the chat function or the reaction tab. जी वही उसी में उन्होंने बोला है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि is it better? Now it's better. Yes, all right. Yes, Thank you. अच्छा, अब जो हेल्थ केयर में जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने प्रीवियसली एक सेशन में, वो मैं शेयर कर दूंगा आइडियाज. मैंने प्रीवियसली एक सेशन में जब मुस्फिरा के साथ, आई थिंक इट वाज माय सेकंड सेशन, तो मैंने उसमें हेल्थ केयर के कुछ आइडियाज किए थे. मैंने वो फाइल, आई हैव द फाइल, आई डोंट वांट टू गो बिकॉज इट गो स्लाइटली मोर ऑफ द सब्जेक्ट. आई वुड गिव द किड्स टू गो थ्रू दैट एज वेल. उसमें बहुत सारे आइडियाज हैं जिसमें आप बेसिकली रिमोट फंक्शनैलिटी से लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो दूर दराज इलाके हैं, फार remote areas, you can't go there, and how you can do all these things, and medication भी उनको कैसे, certain ideas, even financially किस तरह लोगों को more tech savvy किया जाए, वो भी challenges हैं पाकिस्तान जैसी कंट्री में. तो ये सारी चीजें obviously well being की तरफ ही करती हैं. अब जो आप बोल रही थी फ्लड की वजह से आएगा, तो obviously when there is a flood, then there are going to be a lot of pandemics, and बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा होता है, even मलेरिया, मच्छर, और उसके अलावा चीज़ें जो सी हैं वो ख़राब होती हैं बहुत जल्दी. बहुत सारे जो गांव में बारिशें होती हैं, पानी खड़ा रहता है, इट इफेक्ट्स योर नेचुरल वेल बीइंग इन अ लॉट ऑफ वेज. जिसमें आपको पानी साफ नहीं मिलेगा, आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, जिसमें आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके अच्छे नहीं होंगे. जो इर्द गिर्द की चीज़ें होंगी, तो अगर आपके घर के करीब गार्बेज है तो वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगा. तो दिस विल क्रिएट अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट. आपको ही वो गैसेस आपके करीब से गुजर रही होंगी, एंड यू विल बी इनहेलिंग ऑल दोस थिंग्स, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेंगी ये चीज़ें. इस तरह देयर इज a lot of concept in this, and I can keep speaking on this subject. और इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ
की जो वेल बींग है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है हु लिव इन अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, so their mental capacity to understand a lot of the bigger picture is much lesser and they don't know, because वो अपनी रोटी पानी के मुसीबतों से नहीं निकल सकते, तो वो अच्छी जगह पे कैसे रहेंगे। so obviously अगर हम लोग उनके बच्चों को अगर हम किसी तरीके से तरबियत कर सकें, एटलीस्ट सफाई में रहना तो एक हक है ना, किसी ये तो पॉसिबल है सबके लिए, वो कैसे रहा जा सकता है, ये मैकेनिज्म क्रिएट की जा सकती है। तो दिस इज वेयर आई विल गो इनटू दैट सब्जेक्ट। अब बेसिकली कैसे है, मेरे अब स्लाइड में वापस जाऊंगा, एथिकल एआई फॉर इक्विटेबल फ्यूचर्स। बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स क्या है कि बायस मिटिगेशन इन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स। अब इसमें बायस मिटिगेशन कैसे होती है, बेसिकली किसी के कोई डॉक्यूमेंट में किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, किसी को कोई क्या कहते हैं रिपोर्ट का कोई एनालिसिस किसी वजह से नहीं होगा, बेसिकली उसमें वो एक आपका ह्यूमन एरर होने का चांस खत्म हो जाता है। फिर ये होता है कि प्राइवेसी फर्स्ट डेटा प्रैक्टिसेस अलाइनिंग विद SDG 16, बेसिकली लोगों की प्राइवेसी के ऊपर काम होता है। इवन डेटा ब्रीच इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर, कि आपके हेल्थ केयर डेटा शेयर होगा तो वो फार्मा उसको यूज़ करके मेडिसिन बना सकते हैं कि अगर ये इस एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसे हम, या इसको लेवरेज करके वो बीमारी भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये दवाई के लिए डॉक्टर्स को बता सकें कि ये दवाई आप ज़्यादा खाएं, वो अपनी दवाई बनाना शुरू कर देंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज वेयर पीपल कैन गो, ऑब्वियसली आई अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू डेल्व इनटू। अब कॉल टू एक्शन क्या है कि डिप्लॉय एआई इंक्लूसिवली, लर्न नो, लीव नो वन बिहाइंड। तो किसी को इसमें रिपोर्ट का कोई नहीं होगा कि यार हमने इसका प्रेफर करना है, ये मेरे लिए जल्दी बैठा हुआ है, मेरे इसकी जल्दी करनी है, ये पीछे की, वो एआई सब रिपोर्ट्स को 5 घंटे में, 4 घंटे में, 2 घंटे में प्रोसेस करके आपको दे देगा। अब वो आपकी आगे ड्यूटी है कि आपने उसको आगे कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जैसे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हेल्थ केयर में गुजरे, मैं पाकिस्तान आया फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, और मुझे बहुत ज़्यादा मेरा कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया था, एंड आई वेंट थ्रू अ नाइटमेयर थ्रू द हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। फ्रॉम द फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, उन्होंने मेरी जो बेसिकली फर्स्ट एड की थी, दैट वाज प्रीटी मच बैड। और फिर मुझे जो हॉस्पिटल में वेट करना पड़ा 2 घंटे तक, मुझे मेरी फिजिकल एम्पुटेशन हुई थी, मेरी बाजू टूटी हुई थी, एंड नोबडी सॉ मी, डॉक्टर्स डिडंट इवन केयर। तो ये इंसेंसिटिविटी इसलिए होती है कि वहाँ पे वर्कलोड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उनके किसी के साथ कोई इमोशंस नहीं होती। तो ये चीज़ें जब तब दूर होती हैं जब आपके ऊपर प्रेशर लोड कम होगा। Similarly, on my next slide, बेसिकली कि आप कैसे करेंगे ज्वाइन द जेन एआई फेलोशिप। आप ऑब्वियसली इनके साथ, टीम के साथ करें, और आगे फर्दर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी इसके ऊपर मैं आपको गाइड कर दूंगा। एक और स्लाइड के साथ थोड़ा सा मैं बीच में एक्सप्लेन करूंगा, आई जस्ट चेंज माय स्लाइड। नूर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी स्लाइड चेंज हुई कि नहीं। This is a little bit of a lag. I think that's because of either my internet or yours. अच्छा, The previous slide, the joining fellowship one. Guys, meanwhile, wherever you have any questions, feel free, use the chat function and feel free to ask any questions you have. कोई चीज अगर आप चाहते हैं कि सर repeat कर दें, feel free to ask so that he can repeat them for you, not a problem. सॉरी गाइस, मेरी तो स्क्रीन ही बंद हो गई, जस्ट अ सेकंड। Yeah, no worries, no worries. फिर कुछ मेरे प्रीवियस सेशन की कोई चीज़ थी, तो मुझे लगा कि ये रेलेवेंट है इधर के लिए, तो Yeah, sure. मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा जस्ट फॉर। सॉरी, स्क्रीन पहले ऊपर आ रही थी, अब नीचे आ रही। हाँ, Now it's loading. Yes, we can see अच्छा it. लोड हो रहा है, ये इसका मतलब है देयर इज अ लैग समवेयर। There is a lag. There is a lag. ऑलराइट, देन आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो। Oh, प्लीज डू लेट मी नो दैट इफ इट इज बेटर। it is. We can see AI in emerging markets in Pakistan. Absolutely. तो बेसिकली पाकिस्तान में क्या है कि डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस बाय मशीन्स। अब इसका क्या मीनिंग है कि बेसिकली हम जो चीज़ें करते हैं वो बेसिकली हमारे लिए एक
नेचुरल फंक्शन है, बट उसको हमने मशीन्स को दे दिया टास्क। अब की टेक्नोलॉजीज़ क्या है कि मशीन लर्निंग है, उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है उसका। ज़्यादातर एप्लीकेशंस आप सबको अब पता है कि चैटबॉट्स है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ऑटोनमस व्हीकल्स हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हैं। बिजनेसेस में इसके क्या है, एआई के बेनिफिट्स हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है, आपको हाई क्वालिटी डेटा मिलता है इन जस्ट मैटर ऑफ मिनट्स एंड आवर्स, which is if Noor is obviously a much bigger expert than me in financial industry, कि बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल कैन मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन बेस्ड ऑफ फाइनेंशियल आउटपुट, और जो इन्फॉर्मेशन या डैशबोर्ड्स पे आती है वो अगर जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी उतने अच्छे डिसीजंस बनाए जाते हैं, एंड यू नो पीपल गेट अहेड ऑन देयर बिजनेस साइकिल। ये आप सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं जानते हैं, इफ योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड you know your acumen is much bigger than a lot of other people around you, you will grow definitely much faster. फिर क्या होता है कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ होगी तो आज जितना अच्छा किसी जगह पे टच पॉइंट होगा तो उसके कस्टमर एक्सपीरियंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। पर्सनलाइज मार्केटिंग मिल सकती है, कस्टमर सपोर्ट मिल सकती है लोगों को। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बहुत सारे। बीइंग मी, मुझे रिपीटेटिव टास्क से बहुत ज़्यादा अनॉयंस होती है, बट यू हैव टू डू देम। तो वो ये अगर कवर कर सकता है तो दिस दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। और फिर आपके वर्कफ्लोज ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, बेसिकली आपके प्रोसेसेस जल्दी तेज़ होने शुरू हो जाते हैं, पीपल आर मोर प्रोडक्टिव। सब जगहों पे बेसिकली प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे एंगल्स होते हैं। जो नूर स्टार्ट में बात करी थी, शी वांट्स यू गाइस टू नॉट जस्ट think on academic level, but be smart people. So what does the word smart mean? There is an abbreviation for smart: specific, measurable, achievable, realistic, time bound. तो अगर आप ये सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज करना जानते हो, आप कितने स्पेसिफिक हो, आप कोई भी काम करते हो वो कितना मेजरेबल है और वो कितना अचीवेबल है। इट इज़ नॉट कि आप कोई गोल ऐसा सेट कर लो जो अचीवेबल ही ना हो, फिर वो रियलिस्टिक होना चाहिए और एक टाइम के अंदर वो सर्कल में बाउंड होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड टाइम बाउंड। एंड आप किसी भी चीज़ को रैप करते हो टाइम के साथ। आपको अब ये नहीं कहते कि मैंने यार ये डिग्री करनी है, बट कितने अरसे में करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं 50 साल की एज में जाके करना, वो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट वोंट गिव यू, हाँ, एज लॉन्ग एज यू जस्ट वांट नॉलेज, दैट्स इनफ। But if you want to be a good professional, make a lot of decent money on your bank account, then और obviously आपने अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। तो सिर्फ पढ़ना लिखना ही ज़रूरी नहीं है। Being smart and being effective and being able to grow and be a society's strong member, it affects everybody indirectly and directly. तो ये सब चीज़ें आपकी फैमिली वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होगे तो आपकी थिंकिंग पावर वो नहीं होगी। तो सिमिलरली, इफ यू हैव अ गुड करियर, you will grow your family with you, your children will have good education, and all those things are actually interlinked with each other. फिर innovation क्या होता है? Driving new business model and products. It helps you to drive। अब मैं कितने, मुझे 20 साल में इतनी ज़्यादा मेरे काम में, अभी ये पिछले 1 साल में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो पिछले 19 साल में नहीं सीखी कंबाइंड, कि अब दुनिया कितनी तेज़ जा रही है। The more fast you can process things, the more smarter you are, but it comes with the experience. If you don't have hands-on experience and you just have theoretical experience and you have not operationally, technically sound on whatever you do, और इसके साथ मिला दें financial acumen, so this all things combined make you a stronger professional. You know, you make better decisions, you have bigger vision, and you can do a lot of things. Then exactly in AI and emerging marketing, अब वो इमर्जिंग मार्केट्स होती क्या हैं? बेसिकली क्या, जिनकी इकोनॉमीज ट्रांजिशन करी होती हैं डेवलपमेंट टू डेवलप्ड स्टेटस। हम जैसे डेवलपिंग नेशन है, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो आप हो हमारा फ्यूचर, तो कल को हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हम दुनिया में एक डेवलप कंट्री में माने जाएंगे। जैसे मेरे ये जनरेशन में वी सॉ मलेशिया मूव अप, वी सॉ सिंगापुर मूव अप, वी सॉ चाइना मूव अप। So similarly, India is moving up, and we are also on the step way behind. But a lot of things we are doing. Our IT talent is much more stronger than a lot of people in the world, and a lot of people don't say that. और इवन पाकिस्तान में भी लोग इसकी तारीफ नहीं करते, बट our talent is much more higher value than a lot of countries, and that's the good sign. हम लोग ज़्यादा intelligent हैं। हाँ, अगर हम उसको पॉजिटिव साइड पे यूज़ करें, we do scamming online a lot as well. But if we use the good strength, I know some people very, very close to me who are doing very good in IT, and they're doing international jobs in large scale organizations, और बहुत proud feel होता है उनको देख के। तो it's not that कि हम लोग सिर्फ
I know somebody he's my cousin as well, so he works in one of the largest organizations in the world. He's just 28 years old. And Noor might be knowing its name is Honeywell, and he's only one or two Pakistanis out of the whole organization जो उस इंडस्ट्री में वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके अलावा पाकिस्तानी नहीं है. बट दैट्स अ प्राउड थिंग कि पाकिस्तानी वहाँ पे उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में हायर होना शुरू हो गए हैं. तो ये आपको मोटिवेशन के लिए भी कि वी कैन लुक हायर, you know, and you know, they say aim big and miss small. So you won't, if your aim is big, you won't miss much. But if your aim is small, you'll miss a lot. So ये अगर आप इसको कहते हैं aim small, तो फिर आपको एक टारगेट जो है ना, आपने अगर उसे जूम इन करके देखना है तो वो आपको बड़ा नजर आना चाहिए हो जाएगा. तो वो कहते हैं छोटे को भी अब अगर जूम करके देखते हैं तो इट बिकम्स अ बिगर पिक्चर. तो ये सारी चीज़ें काम करती. एग्जांपल्स हैं जिन कंट्रीज़ के जो डेवलप स्टेटस में आ चुकी हैं, वो ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स नेशन भी कहलाती हैं. अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो इससे क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल होता है. जैसे डेवलप नेशंस के ऊपर वो अपने पीक को पहुंच चुके हैं. अब इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना है. और हम लोगों के पास अभी बहुत पोटेंशियल है क्योंकि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं. तो वी हैव अ लॉट टू वर्क हार्ड. अबाउट ह्यूमन कैपिटल अगेन, हमारे जो मैन पावर है जो 250 मिलियन पीपल, हम लोगों को बहुत सारे जो लोगों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बहुत सारे मामलात में. और वो इम्प्रूव करना हमारे पास, इसका मतलब इट गिव्स अस एज, और हम लोग उसमें ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ले सकते हैं. और उसके बाद हमारा इवन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इंक्रीज हो सकता है. हमारी अगर विमेन ओरिएंटेड हेल्थ इज इम्प्रूव्ड, स्पेशली इन चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा अच्छे लाइफस्टाइल से वो चीज़ों के ऊपर लोग अब अच्छा जीना सीखेंगे तो हमारी जो विमेन चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. मतलब जो बच्चे बर्थ में अगर पास ऑन हो जाते हैं इस दुनिया से, तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड एनर्जी ऑफ होल नेशन. तो अगर हमारा वो परसेंटेज डाउन होगा तो दैट मीन्स वी आर बिकमिंग प्रोडक्टिव. और हमारी वो चीज़, अगर वो बच्चे अगर पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो दैट दे विल मेक मोर मनी फॉर अस. इवन सिमिलरली आई से अ लॉट दैट हमारी अगर विमेन मैन पावर जो है अगर वो इंक्लूड हो जाएगी इस चीज़ के अंदर. वैसे विमेन मैन पावर भी एक गलत वर्ड है, बट विमेन ह्यूमन कैपिटल विल एंटर इनटू अ लॉट ऑफ वर्क. जैसे बांग्लादेश का मॉडल है, बांग्लादेश ने डेवलपमेंट क्यों की, हमारा उनकी करेंसी हमसे आगे क्यों गई? बिकॉज देयर विमेन वर्क, दे आर वर्किंग हैंड टू हैंड विद देयर मेन, एंड दैट्स व्हाई देयर फाइनेंशियल कैपिटल इज इंक्रीजिंग. उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, उनकी करेंसी की वैल्यू हमसे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. दे आर लेस देन अस, but they are stronger currency than us. Not that they are very much developed than us. We are almost similar on development level. Or what they are doing is उनका लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं. The more people are earning there versus our. तो हमारे घर में एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले हैं. तो और फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि यंग एज से काम करना शुरू करें. दिस इज़ द मोस्ट. पाकिस्तान में 30 साल का लड़का होता है, वो माँ बाप उसकी शादी करा रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टैबूज हमको तोड़ने बहुत ज़रूरी हैं. इंटरनेशनल मॉडल्स में बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी जो यूनिवर्सिटी की फीस है अपने काम करके पे करते हैं. उनमें उनके माँ बाप उनकी फीस नहीं पे करते. तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट होते हैं. एंड इट गिव्स यू मोर एक्सपीरियंस, मोर फास्टर यू बिकम मोर बेटर प्रोफेशनल. लर्निंग आपका एक वर्क एटीट्यूड बन जाता है. ज़्यादातर जो हमारी मैन पावर है वो लेजी क्यों है? वो इसीलिए कि घर में सारा दिन बैठे रहे, एक बस डिग्री, कॉलेज चले गए और दैट्स इट. माँ बाप को बोला हमने बहुत कर लिया, और वो 30 साल तक यही एंजॉय करते रहते हैं. रादर देन लॉट ऑफ कंट्रीज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू बाय होम्स, मॉर्गेजेस, शादी करनी है, उसके बाद आगे गाड़ी लेनी है. तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज यू विल बी मच स्टेबल बाय 30, रादर देन आप 30 के बाद स्टार्ट कर रहे हो, यू आर वे बिहाइंड. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ऑन टाइम लाइन्स. आई विल मूव हेड टू माई इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर. एआई अपॉर्चुनिटीज कैसे आती हैं इसमें? जो आपकी जीडीपी थ्रू इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और इसी तरह आप टेक्नोलॉजी में आप मैन पावर अगर अपने आप काम पे डालेंगे, उसको आप किसी टेक्नोलॉजी में डालेंगे, किसी प्रोडक्टिविटी में डालेंगे, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी. अब जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो आपकी पूरे ओवरऑल कंट्री के लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी. एक बंदे को कितना कमाई मिल रही है साल की या मंथली, ठीक है. और जॉब क्रिएशन होगी, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी. जब ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स होंगी, जो ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे उनके पास, जैसे चाइना का मॉडल है, तो पीपल आर फिल्थी रिच ओवर देयर. व्हाई दे फिल्थी रिच? दे वर्क हार्ड and they invest in the right places. They keep on working and they keep on spending on their well-being as well. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होता है अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आ जाएगी. ट्रांसपोर्टेशन का भी मॉडल नूर में वैसे एक बैकग्राउंड पे कि मैंने वो भी लेडीज़ की प्रोटेक्शन के लिए उनको सेफ स्पॉट्स कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आई डेफिनेटली शेयर विद मुस्फिरा. आई थिंक शी कैन शेयर विद
group members later on. Probably she already has it, all this information. वो मेरी previous information she can also, but I'm sure I've shared with her before. So Yes, I otherwise have. I'll share again. Yes, I yeah, do तो have. इन बच्चों के साथ भी प्लीज कर दीजिएगा ताकि इनको भी पता चले कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं Sure, AI के अंदर. तो sure, I will. प्लीज. अच्छा, तो फिर इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में? जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है कि उससे क्या होता है कि वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ये रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स एंड मार्केट परफॉर्मेंस. आपकी मार्केट्स पूरी हैम्पर होती हैं. अब वो वहाँ पे AI क्या करे जहाँ पे लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारें. और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, फिर लैक ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन. हमारे मुल्क में अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वी डोंट हैव मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस भी बिल्कुल कोई नहीं सही तरह प्रॉपर्ली काम करते. जैसे हम मिसाल के तौर पे हम टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर सकते, जस्ट गिव यू वन. तो इसी तरह लीगली भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं. वो बात में आपकी एज से ज़रा बड़ी बातें हैं, लेकिन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. स्किल गैप, नीड फॉर ट्रेन वर्कफोर्स टू हैंडल AI टेक्नोलॉजीज. अब ये भी हमें चाहिए. हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं पर कितने लोगों को AI टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी आती हैं? रोबोटिक्स में कितने लोग काम करते हैं? बहुत कम. वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वही कर सकते हैं. बट चलो वो भी करें, लेकिन पाकिस्तान को वो फिर हमारा ये काम बनता है वी पे बैक. मी एंड नूर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी ट्राइंग टू पे बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी नो एज वेल. तो हमारा ये भी काम है कि हम अगर जितने ज़्यादा लोगों को ये चीज़ अपने मैसेजेस पहुंचाएंगे आगे से, वो एक से दो, वो तो स्क्वायर इफेक्ट वाला काम है सिंपल वर्ड्स में. केस स्टडीज क्या है? AI इन कार्बन अकाउंटिंग, वो मैं पहले कर चुका हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में. AI इन सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग एट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और AI इन गवर्नेंस कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये प्रॉबेबली स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, बट इनको बोल दूंगा कि सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि इन्वायरमेंटल, पहला एग्जांपल जो है ये बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को हेल्प करने के लिए है. दूसरा एग्जांपल ये सोशल, सो ई फॉर एनवायरनमेंट, एंड दूसरा सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के. सोशल इम्पैक्ट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की, आप उसमें कितना अच्छा काम कर सकते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. और तीसरा जो है वो बेसिकली गवर्नेंस कंप्लायंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितना अच्छा गवर्नेंस कर सकते हैं कंप्लायंस की, बेसिकली कि कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैमिंग नहीं है, एवरीथिंग इज लीगली डॉक्यूमेंटेड ऑफ एवरी यूजर और अकाउंट होल्डर दे हैव. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ दैट जर्नी. जल्दी जल्दी मैं इन सारी चीज़ों में जाऊंगा, मैं एक एक लाइन में बोलता जाऊंगा. प्रिसीजन एग्रीकल्चर में AI आपको हेल्प करता है, हेल्थ केयर में आपको हेल्प करता है, एजुकेशन में ये नोट्स आप ले लीजिएगा. पहले जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइजिंग डेटा ऑन सॉइल कैसी है, वेदर पैटर्न्स क्या हैं, क्रॉप यील्ड्स कितनी होंगी. दिस हेल्प्स फार्मर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. सिमिलरली एयर पावर हेल्थ केयर में बोल चुका हूँ. Disease detection, personalized treatment plans, and managing patient records. This improves healthcare outcomes and makes medical services more accessible. Education में क्या रोल है? कस्टमाइज लर्निंग पाथ्स मिल सकती हैं बच्चों को, adaptive assessments मिल सकते हैं, स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम्स मिल सकते हैं. Then this enhances the learning experience and helps students achieve better academic results. आपका perspective ज़्यादा बड़ा हो जाता है. Governance कैसे होगी? AI is being used to improve public services through smart governance solutions. This includes automating administrative tasks, enhancing transparency, and providing real-time data for decision making. अब वही जो मैं पहले बात कर रहा था, जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग होगी. गवर्नेंस नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, अगर देर इज यूनिवर्सिटी में, किसी भी फैमिली में भी, अगर आपको अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करने का पता, अपनी फैमिली इनकम को आप रिकॉर्ड करो, अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो दैट हेल्प्स यू. Data always helps you कि यार हमारा कितना खर्चा होता है और we can save this much and we can reduce this much expense on a certain thing. Everywhere data can, like आपकी छोटी पर्सनल लाइफ में से लेके किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये काम आती है. Banking and finance, AI algorithms are helping banks detect fraudulent activities, manage risks, and offer personalized services to customers. This increases efficiency and customer satisfaction. मैं पहले भी थोड़ा सा बोला तो ये आपके यहाँ पे इसका ये impact आ जाता है. Just a sec, please. Okay. एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस पे ये हेल्प करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में काम करता है. चैलेंजेस जो हैं, डिस्पाइट द प्रोग्रेस पाकिस्तान फेसेस चैलेंजेस सच एज infrastructure and a lack of skilled professionals, and the need for robust regulatory frameworks addresses these issues is essential for maximizing the benefits of AI. ये I think it explains itself. हमारे पास इतने ज़्यादा skilled professionals नहीं हैं, जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, but there is a huge gap. Either we have top line or we are a bottom line. We don't have something in the middle. हमारा डेट जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो या बहुत ही डाउन माइंडसेट की है जिसका लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं है, या जो लोग एक नीश में रहते हैं, एक एलीट हैं, उनका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है. देयर इज नो वन इन द मिडल.
तो अगर जितने लोग हमारे ज़्यादा मिडिल लेवल पे ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे गैप्स को, ब्रिजेस उनसे हैं वो बिल्ड होंगे, और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल कंट्री की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। कुछ टाइम से बेसिकली पाकिस्तान के हालात की वजह से आई फील दिस इज अ डेटा ऑल्सो, अगेन इट इज़ जस्ट समथिंग इन माई हेड, बट आई कैन, जब मैं पाकिस्तान से गया था, it was 2011, and when I came back I felt like Pakistan became more poor, so the middle class has diminished to a smaller percentage. So ये चीज़ें जो मिडिल क्लास थी वो बल्कि लोअर मिडिल क्लास से पॉवर्टी की तरफ चले गए। तो हमने ये पॉवर्टी इन सारी चीज़ों से, इन चीज़ों को इम्पैक्ट करना है कि ये पॉवर्टी एलिवेशन से लोग अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, निकलें इन चीज़ों से बाहर। और अब जस्ट अ सेक प्लीज, सॉरी। ये इसमें क्या है कि डाटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग कैसे होती है, ठीक है, ईएसजी में कैसे चलता है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। एनहांस डेटा कलेक्शन, इम्प्रूव रिपोर्टिंग एफिशिएंसी, ये मेरी फील्ड है। बेटर डेटा क्वालिटी से बेटर एफिशिएंसी आ जाती है, आपकी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और एंड इनसाइट्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है बेसिकली एनवायरनमेंट के थ्रू, आपकी एनवायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों पे, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन है जो ज़्यादातर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में यूज़ होती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अपडेट्स, आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। की स्केलेबिलिटी क्या होती है, और जैसे जनरल एआई और ईएसजी, एनवायरमेंटल में और हेल्थ केयर में, सोशल में, सस्टेनेबिलिटी में, इनकी क्या स्केलेबिलिटी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब साइज की उनसे इम्प्लीमेंट रोबस्ट ईएसजी रिपोर्टिंग में हेल्प करती है। दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। तो बिजनेसेस में इनके ये एडवांटेज होते हैं। इसके चैलेंजेस टू कंसिडर क्या होता है कि एथिकल बायसेस होते हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं। इंश्योरिंग दैट एआई सिस्टम्स आर अनबायस्ड एंड एथिकली साउंड इज क्रिटिकल टू मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ईएसजी रिपोर्टिंग सिस्टम। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्किल गैप कैसे हो, देयर इज अ नीड फॉर ट्रेन प्रोफेशनल्स। इसी तरह डेटा प्राइवेसी, ये एआई एंड एनवायरमेंटल में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। और अगर आप लोगों के अभी कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिबेट ऑन दैट। Noman, over to you. there are a few questions. So if we can see you now, you can close the screen, जी। and then we can see you, because I think that will create more connection. There are a couple of questions. So go ahead, Fajar. You have a question. You can ask. Assalamu alaikum. So I just wanted to ask, especially in the handling the paperwork in the healthcare side, we've known that AI has the hallucination phenomena where it makes things up. So how would we ensure that it inputs the correct information, that it won't make a patient's records up? जी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी साउंड। मैं पिछले 2 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा सब डॉक्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि वो हाउ डू यू इंश्योर दिस इज़ नॉट डन। तो बेसिकली उसका बहुत इजी आंसर है कि मैंने एक सेंटेंस में बोला था, वो ये था कि बेसिकली क्लिनिकल सुपरविजन ह्यूमन बीइंग की होती है किसी भी फाइनल डिसीजन के ऊपर। तो वो एक आपको रेडी डॉक्यूमेंट बना देता है, बट यू स्टिल हैव टू हैव अ स्किल टू रीड दैट डॉक्यूमेंट वेरी क्विकली एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन और एज ए नर्स। एंड मैंने बोला था कि वो प्रोसेस करके साइन ऑफ कर देते हैं। ये होता है कि वो देख लेते हैं, मोस्ट डेटा को वो कर देते हैं, और आपको लगता है कि कहीं गलती है तो वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एआई वोंट साइन ऑफ। हम उससे आगे वाला स्टेप नहीं करते जिसमें आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। सो वी जस्ट मेक इट रेडी टू टेक अ कॉल ऑन दैट डॉक्यूमेंट। सो ऑब्वियसली बहुत सारी एडमिन, sorry, my camera is not working, sorry, I didn't know that. So you guys can see me now? Yes. Okay, thank Thank you. तो उसमें ये होता है कि आप खुद कुछ एआई को आप इतनी ऑटोनॉमी नहीं दे सकते अभी जो वो इस तरह की गलती करे। अगर आपको लगता है कि उसके प्रोसेस में कोई गलती है एंड यू विल फाइंड दैट, और बेसिकली किसी भी जगह पे लगते हैं तो हम पहले उसको खुद टेस्ट करते हैं। वी डू अ ट्रायल ओवर दैट, वी गिव देम अ 3 months ट्रायल, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा हमारा क्लाइंट तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लेके नहीं जाते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. If still doesn't, so I love to get another twisted question on the same subject. No, I Musa, understand. Musa, you can go. Hi, hopefully I'm audible and visible. So I have two questions. My first question is, it's part of a general discussion about how, regarding the SDGs, how developed nations over time have, used natural resources and abused them to the point where the earth is now. And जहाँ पे developed nations अब उस तरह नहीं use कर सकते resources because they're worried about further worsening the situation, right?
So I would like to know your thoughts on that. And secondly, regarding AI integration in Pakistan, I I think that Pakistan में अभी ऐसा infrastructure है ही नहीं कि AI on a general scale हो integrate, right? In industries, government में भी is just a bunch of old people who don't understand AI, right? So how can you progressively integrate AI into Pakistan? Thank you. अब ये बेसिकली मैं भी इसको इस पहले वाले क्वेश्चन को जो आपने बोला था कि हमारे पास इंटरनेशनली जो लोग यूज कर चुके हैं, ये मेरे भी ध्यान में बहुत अरसे से है कि नाउ लाइक अमेरिका हैज यूज्ड अप ऑल देयर टेक्नोलॉजी। अब जब वो चाइना और अमेरिका जब पोल्यूशन करते हैं, दूसरे लोगों को बोलते हैं कि आप तुम लोग ना करो, तो उसका बेसिकली जो माइंडसेट ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रोथ करेंगे। मैं और नूर बहुत सारे इस चीज़ पे सेशंस कर चुके हैं ऑन, बिकॉज वी डू अ प्रोफेशनल लेवल नेटवर्क एज वेल एंड वी डू अ लॉट ऑफ सस्टेनेबिलिटी थिंग। इसका ये आंसर है कि देखिए ये जो आप सस्टेनेबल टूल्स यूज करेंगे किसी चीज़ को भी यूज करने के लिए, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू बी इम्प्रूव्ड। वो लोग तो डर्टी दे गॉट डेवलप्ड बाय डूइंग गेटिंग देयर हैंड्स डर्टी, बट अब हमें उनसे, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा इजी आंसर दूंगा कि हमारी जनरेशन को या हमसे पहली जनरेशन को वो लग्जरी नहीं थी जो आप लोगों को है। यू गाइस आर स्मार्टर देन अस, राइट? अब लेकिन आप पाकिस्तान में ही हो, बट यू कैन ग्रो मच बेटर बिकॉज यू हैव द टूल्स टू ग्रो, राइट? तो सिमिलरली वो जो आप अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो उनको जितना हार्ड यार्ड्स करने पड़े थे वो चीजें करने के लिए, हमें वो करने की जरूरत नहीं, हमें उतनी पोल्यूशन से वो करने की जरूरत नहीं है। यू फाइंड अ स्मार्टर सॉल्यूशंस टू डील विद। जैसे कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हम अपनी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? आप एआई जॉब करें, रिमोट जॉब करें, आप अपनी स्किल को ग्रो करें, पाकिस्तान बाहर से पैसा लेके आए इंडस्ट्री बनाने की, फिर उस पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन लेके आए। ये दो चीज़ें अगर पाकिस्तान अच्छी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके करेगा, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारा खाना बहुत अच्छा है, हमारी लेदर बहुत अच्छी है, हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, अवर मैन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम अच्छी चीज़ों को करेंगे तो हम जल्दी डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे, हमें उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बारे में क्या आपका क्या ख्याल है? मेक सेंस? Absolutely. I'd like to add into what you're also saying, Numan, because Musa asked a very good question. जी 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 And जी जी, I like to नो I डाउट। like to answer the second bit of his question as well, which is for everyone, right? Regarding the first question, Musa, the advantage that you guys have, that there are lots of problems around you, is that you can solve the problems keeping in mind the profitability. Companies, individuals, governments, us, everyone around the globe is driven by profitability. ठीक है, अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो जिस तरह से नुमान बता रहे थे कि एनवायरनमेंट पे या सोशल पे या गवर्नेंस पे काम करती है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसने अपना मेकअप बहुत अच्छा कर लिया और वो अपना मेकअप दिखा सके लोगों को कि सी हाउ रिस्पॉन्सिबल एन ऑर्गेनाइजेशन आई एम. We're talking about US, the case in point right now. With the recent administration there, what has happened is all of the ESG related projects and all of the climate related projects have taken a backseat because it is not a mandate of a government. And this is a developed nation that we're talking about. अब इसको जब हम पाकिस्तान के शल में देखेंगे, so you'll say कि मैम फिर पाकिस्तान में तो हमारा क्या ही होगा, हम तो अभी डेवलपिंग से भी नीचे आते चले जा रहे हैं. ठीक है, पासपोर्ट हमारा नीचे से माशाल्लाह चौथे नंबर पे है across the globe. But that essentially means that it is an opportunity for children like you, professionals like you, to identify कि यार इनके pain points तो हर जगह पड़े हुए. We come across as a more profitable resource, right? If our currency is devalued, that just means कि हमारा skill set devalue नहीं हुआ हुआ. Skill set हमारा फिर भी बेहतर है, capacity building हमारी फिर भी बेहतर है, but हम उसी जो exchange rate है उसको अपनी advantage के लिए use कर सकते. If somebody is paying you $2,000, right, as a remote AI specialist, Musa, sitting in Pakistan, that's less money for them, more profitability for them. But are you going to land a job in Pakistan for $200, $2,000? That is something that all of you need to connect the dots. The final thing, on the government bids, कोई भी इकोनॉमी दुनिया की जितनी मर्जी हो जाए ना, उसमें हम ये नहीं कह सकते that the सरकार is going to take the onus of fixing the country, fixing the people, fixing the economy.
Otherwise, दुनिया का कोई entrepreneur जो था, वो जिंदा नहीं रहता. Otherwise, Elon Musk would not be doing failed attempts, sending, spaceships after spaceships to space, right? Because it was the government's mandate. It's not. Entrepreneurship thrives because the government cannot do everything itself. But if you were in Noman's slide, you're seeing that NCAI, those of you who are really, really excited about picking AI as a topic, just look out for them and search for them. I'll be sharing a couple of examples of Pakistani-based AI startups. And you'd be like, ma'am, इनका impact Pakistan में कहाँ है? तो Pakistan में है ही नहीं. They're based out जी of जी Pakistan. They're offering their services internationally. Just look at this one agri-tech example that I have shared with you guys and see their impact and see what they are up to. And this is a very recent startup. It's not that old even. So think with that hat on कि यार मैं profitable एक resource हूँ दूसरों के लिए. Yeah, you get where we're coming from. But there are more questions, but I'm loving the discussion that you guys are doing. And I think it's a really Musa, what was informed the second decision. question? You can jump in. What was your second question? Sorry, मुझे थोड़ा सा हुकूमत क्या एक कर subject- रही है? हाँ 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 वही वो तो आपने जवाब दे दिया. Any question more? Yeah, there's another one from Afra. Afra, okay. And then Hassan has one in the chat. Go Yes, ahead, Afra, Afra. you can go. Yeah. जी Afra. Sorry, मैं तो नहीं सुन पा रहा. Everybody else can Am I hear? audible? Yes, now you are, Afra. Okay. So I have this question that since we are trying to use AI for the betterment of the world, but at the same time, AI is consuming a lot of water. That is, I think, very harmful for us as humans because there are people who cannot even get like water on a level where they can live a comfortable life. So what do you think about that? Because Numan's whenever I favorite ask topic. Afra, I जी, got your ये- question. Your voice is breaking up, so I'll rephrase it for Actually Numan. ये बहुत Numan, complex question है. data centers. It's your जी, जी, favorite जी, topic, I जी, know. जी, डेटा सेंटर्स में बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा मैं एडवांस में आपको एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इसका कोई हल नहीं है. यस देयर इज सोल्यूशन बाय देम. उसका बेस्ट हल ये है कि वो ऑफसेट करें. एक ऑफसेट चीज होती है कि जिसमें आप उतना ही कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द इकोनॉमी और या इन्वायरमेंट. एंड बिकॉज आप ऑफसेट कैसे करते हो? आपने अगर इतने दरख्त को काटने का नुकसान दिया या प्लेनेट को इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस दिए हैं तो आप इतने दरख्त भी लगाएं. इसको कहते हैं ऑफसेट करना. जो भी आप पोल्यूशन फैला रहे हैं या आप जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने जीएजी एमिशन से, उसको आप ऑफसेट करते हैं. अगर आपका पानी किसी वजह से कम हो रहा है या आपकी मड लैंडस्लाइडिंग हो रही है किसी एरिया में तो आपने दरख्त काटे हैं नेचुरली. जैसे पाकिस्तान में अभी हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं. हम वी आर बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटीज और वी आर बिल्डिंग होटल्स ऑन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान एट द पाथवे ऑफ वाटर. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये सब चीज़ों के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. तो ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है एआई बेसिकली टेक्नोलॉजी अपने डेटा सेंटर्स में, मुझे सेनेटर शहरी रहमान ने कहा था, मैंने अपना वो पिच किया था हमीज नेट का सोल्यूशन नूर, तो शी सेड नो 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 एआई नहीं, ये तो ग्लोबल वार्मिंग करती है. मैं अपने सेनेटर का, हालांकि शी इज वेरी वेल रेड लेडी एंड एवरीथिंग, प्रोबेबली शी मेंट इन अ वे कि वो ये होता है. लेकिन जो हम सोल्यूशन देंगे वो सोल्यूशन कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा जल्दी डिसीजंस बनाने में पोल्यूशन के अगेंस्ट, वो हमारा ऑफसेट है. आई होप इट मेक्स सेंस कि हम अगर छोटे से सॉफ्टवेयर से जो मिनिमम एआई से जो अगर हीट जनरेट कर रहा है, हम बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन दे के अपने क्या कहते हैं वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करने में मदद कर रहे हैं. इसी तरह जो बड़े एआई के जो डेटा सेंटर्स है राइट नाउ दे आर क्रिएटिंग द इम्पैक्ट, वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द, और वो अभी ऑफसेट करने में बहुत साल लगेंगे. लेकिन उनको उसका ऑफसेट करने में उनको पता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में वो ये कॉल ले रहे हैं कि दे वुड क्रिएट मच sorry guys, sorry. No I've been worries, I silent think. so क्या कहते हैं कि वो ऑफसेटिंग से आपकी जो चीजें हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. ऑब्वियसली देयर इज नो रियल आंसर टू दैट कि वो कर रहे हैं, एंड आई वेरी मच नो इन द इंडस्ट्री
जो डेटा सेंटर्स हैं वो इनका इस टाइम पे इतना वर्स इम्पैक्ट है कि हम उसके 4 सालों तक नुकसान भुगते हैं। Yeah. लेकिन उसका ये सोल्यूशन है कि उनको वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर वो यही एआई और टेक्नोलॉजी यूज करने का फायदा है कि अगर आपको रिपोर्टिंग और इस तरह के सॉल्यूशंस के थ्रू पता चल जाएगा कि ये लोग इतनी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट्स का आगे काम है कि उनको फाइन करें, उनको बोलें कि यार तुम ये ऑफसेट करो, ये यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो इसका बहुत एक इकोसिस्टम है, बहुत डिटेल में बात करने वाली अगेन बात है, तो हम इस पे घंटों बात करते रहते हैं। पाकिस्तान में तो किसी को समझ नहीं आती, बहुत अरसे से कर रहे हैं। क्यों नूर, यही बात है Yeah, कि नहीं? I told them in the chat that look up carbon credits. Again, जी 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 like we were telling Musa and everybody that it's all about profitability. वो अगर environment पे अफरा एक चीज का adverse effect हो रहा है, so people like yourselves have created an opportunity around it, and they are using AI to actually identify कि कार्बन क्रेडिट स्कोरिंग कैसे होनी है। इतना मैंने गंद मचाया इन सिंपल लैंग्वेज, इतना मैंने गंद मचाया, इतना मेरा कार्बन फुटप्रिंट था, उसके बदले this is what I have done, right? So you are actually selling the carbon emissions that are going out there into the market, and you are actually contributing back to society. So everything really revolves around the opportunity. We have lots and lots of questions coming up. So go हसन का ahead. Yeah, क्वेश्चन Shayan, था you नेक्स्ट। can. सॉरी Shayan, you आपने बोला can. था हसन का है, तो मैं उसमें पहले जाऊंगा। डेटा प्राइवेसी का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डेटा प्राइवेसी पे बहुत अच्छा। और पोटेंशियल ब्रीच ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी भी क्या होता है। अब इसमें क्या है कि ये इसका ये टूल होता है कि साइबर सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उसका जो क्लाउड होता है, देयर रिक्वायरमेंट्स आर इन द सेम कंट्री। इफ देयर इज अ डेटा ब्रीच, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका क्लाउड प्रेजेंस कहाँ पे है। तो अगर पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है तो पाकिस्तान विल नॉट फील सिक्योर इफ द क्लाउड इज नॉट इन पाकिस्तान। Similarly, if something in UK, which I do, if the cloud infrastructure of any organization, just say, what is that organization? यार क्लाउड की जो फेमस ऑरेंज कलर का जिनका ब्रांड लोगो है, ऑरेकल। ऑरेकल का अगर क्लाउड उधर होगा तो हम उसका एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कर लेंगे और वहाँ से हमारा डेटा वहीं पे प्रोटेक्टेड होगा। तो बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस हैव दिस अंडरस्टैंडिंग के जो और गवर्नमेंट्स ने एक रूल सेट किए हैं कि इसके अगर हमारा डेटा ब्रीच, हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे कि हमारा डेटा सेंटर मुल्क से बाहर नहीं है, मुल्क के अंदर है, तो हम उनको सू कर सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान से बैठ के किसी का डेटा मॉनिटर कर रहा हूँ तो वो उनके लिए इनसिक्योरिटी है, दे वोंट गिव मी दैट वर्क जिसमें उनका डेटा इनसिक्योर होगा। तो इस तरह के भी आपको जब जॉब ढूंढनी है, ये वैसे बहुत की है, इसके बहुत सारे मतलब फैसेट्स हैं इसके समझने के कि आपने इसमें क्या करना है। मुझे वो वाला काम नहीं मिलेगा जिसमें डेटा ब्रीच का रिस्क होगा। तो आपने ऐसी जॉब्स नहीं ढूंढनी जिसमें आपको, ऑनलाइन रिमोट इंटरनेशनल जॉब्स नहीं ढूंढने जिसमें आपको कोई कंपनी वो जॉब नहीं देगी। आपने बेसिकली कुछ ऐसे ऐसे रोल्स पकड़ने हैं जिससे आप पाकिस्तान में वो काम ला सकते हैं। अगर जैसे मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर में लोगों को पता है जो सॉफ्टवेयर बन रहा है और वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले वो आपका डेटा यूज़ करके उसको रन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो इतना बड़ा लॉ सूट होगा कि वो कंपनी तो कंपनी वो क्या कहते हैं, उसके मालिक भी कितने अरसे जेल में रहेंगे। तो दीज आर द थिंग। लुक अप, अच्छा ये तो आप ही ने लिखा, लुक अप कार्बन क्रेडिट्स। तो बस ये मेरा आंसर था। आई होप इट आंसर्स हसन व्हाट यू वर थिंकिंग। नूर, आपका इस पे कुछ फीडबैक? यू देयर नूर? गाइस, आई वाज ऑडिबल? अच्छा, ठीक। कोई और क्वेश्चंस भी हैं? जी शायान, प्लीज गो अहेड। Assalamu alaikum. Am I audible? जी जी, यू आर। I had a question कि obviously human capital important है, human skills important है, but with that हमें resources भी चाहिए, हमें we need the money, we need the resources to implement AI, to find solutions to problems, to make profit. लेकिन आई डोंट थिंक कि उस तरह का कैपिटल लाइक वट हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं इतना ज़्यादा कैपिटल। AI रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इफ़ नॉट मिलियंस, थाउजेंड्स। तो इट रिक्वायर्स यार ये तो लाइक बहुत ही, द सॉरी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डू लाइक यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर, जस्ट मतलब मैं आपको बताता हूँ, डू यू रिमेम्बर डीप सीक एंड चैट जीपीटी इशू? यस आई कैन। उसके साथ मैं लाइक जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे उनके स्किल ने
यूएस के इंजीनियर्स के, यूएस की कंपनीज के कैपिटल को बीट किया था, उनके जो रिसोर्सेज थे उसको बीट किया था बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कभी कभी इस तरह होता है कि लाइक जीपीयूज़ का हमें लाइक दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर हमें कोई एआई मॉडल इम्प्लीमेंट करना है तो एटलीस्ट बाकी कुछ ना चाहिए हो, जीपीयूज़ तो उसमें चाहिए होंगे। तो हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को? आई वुड लाइक टू नो। पर्सनली तो ये सारी चीज़ें तो येस यू आर राइट एंड आपको इसको करने का बेसिकली ये तरीका होता है कि यू सिट टुगेदर, जैसे मैं और नूर अभी आपके साथ बात कर रहे हैं ना, इस तरह यू सिट टुगेदर विद द राइट minded people. You work in an organization, you go into a university where they provide you that kind of exposure. आप खुद नहीं क्रिएट कर सकते। अगर ये चीज़ें लोग करना शुरू कर देते तो फिर तो बहुत दुनिया में इनोवेशन, क्योंकि फंडिंग की सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं बहुत बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास फंडिंग नहीं है। उसको कैसे आप करोगे? तो वो फंडिंग करने के लिए आपको राइट पाथ पे चढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर उस पाथ पे नहीं चढ़ोगे, ट्रेन आप, मैं एक पहले स्टार्ट में बात की थी, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, दैट इज लाइक यू आर फ्लाइंग ए प्लेन विदाउट द डायरेक्शन। आपने किस आपकी अराइवल्स या डेस्टिनेशन नहीं आपको पता, तो आपको डेस्टिनेशन आपने, इसलिए आपने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है। यू विल आस्क योर पेरेंट्स टू फंड यू फॉर दैट। अब आप वो बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो आपको उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाएंगे, उस तरह का एक्सपोजर दिलाएंगे, उस तरह की जॉब्स में आपको लेके जाएंगे जहाँ पे ये सिस्टम आपको मिलना पॉसिबल होगा। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तानियों को वो एक्सपोजर नहीं है, तभी तो हम इतना पीछे हैं। तो यू हैव अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट उसका रास्ता ये है कि जैसे मैंने अपने कैरियर पैथ को अच्छी जगह पे चूज किया, रादर देन थिंकिंग कि यार मैं एक इंडियन कंपनी में यूएई में काम कर लेता हूँ, दैट्स फाइन, मेरी सुबह से शाम हो जाएगी। नहीं, आपने अपने लिए चूज करनी है कैरियर पाथ। व्हाट क्वालिटी यू लुक फॉर यू, अगेन मैंने एक बोला था, एम बिग, यू विल मिस स्मॉल। तो आप जितना बड़ा एम करेंगे, उस एम में ये है कि एनडीयू में पढ़ो, आप फास्ट में पढ़ो, आप लम्स में पढ़ो, ऑब्वियसली गो ऑन अ हायर मेरिट। अपने चैलेंजेस को दूर कैसे करना है, हमारी लिमिटेशन है। हमारा पासपोर्ट बहुत, मेरे नाम को देख के ना, मेरे पासपोर्ट को पूछते थे तो मेरे से लोग बहुत इंटरेस्टेड होते थे बात करके। वेरी वेरी टफ, नूर ने आगे बात की थी। और व्हेन दे यूज्ड टू फाइंड आउट दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, उनके मुंह का रंग उड़ जाता था। दे नेवर यूज्ड टू वांट टू टॉक टू मी। दिस इज आवर वैल्यू एज ए नेशन। पहले हमने अपनी वैल्यू को एलिवेट करना है थ्रू बीइंग पॉजिटिव, कि यार हम कुछ अपने आप को चेंज करें एज ए पाकिस्तानी, हम अपना इम्पैक्ट बनाएं, हमारा नाम चले, हमारी सर्विसेज चले, हमारा वो कहते हैं डंका बजे। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप अपने कैरियर पाथ को फॉलो करेंगे जितने स्मार्ट हो। अब आई हैव एन एग्जांपल, नूर नोज समबडी इन माय फैमिली, ही वाज फ्रॉम ए वेरी वेरी टफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनको बहुत मुश्किल थी, वेरी वेरी क्लोज टू मी। तो उन्होंने अपनी एक कैरियर पाथ बहुत अच्छी चुनी, उस कैरियर पाथ से he is now on a very very big scale. He is like one of the top decision makers in Pakistan। ठीक है, तो वो ये होता है कि वो पैसा भी बहुत कमाते हैं। अब वो उन्होंने बिल्कुल, उनके पास एक शर्ट होती थी, एक ट्राउजर होता था, दैट्स हाउ ही सर्वाइव्ड एंड ही लुक्स लाइक यू। तो शायद आपकी, आपसे थोड़े से मिलते हैं वो, जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो बट दे व्हाट ही चोज ओनली वन थिंग वाज कि अपने लिए उन्होंने बेहतर अपॉर्चुनिटी का डिसाइड किया कि यार आई वांट अ क्वालिटी लाइफ, मैंने वो, एंड ही नेवर गेव अप इन द मिडल। अब डिस्ट्रैक्शन से आप अगर आप चले जाओगे, यार ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, चैलेंजेस आर देयर, आपने उस चैलेंजेस को एक सटल तरीके से नेविगेट करना है। आपने, या पानी में हो, पानी में डूबना नहीं है, आपने उसमें स्विम करना है। अब वो सीखना पड़ता है, वो सारी चीजों को इम्प्रूव करना पड़ता है। योर स्किल सेट, योर माइंड सेट हैज टू इम्प्रूव। तो आई होप दैट मेक सेंस। थैंक यू। Yeah, Mariam, you can go ahead. Okay, so my question was related to AI bias. So I've seen कि, for example, अगर environment की बात हो रही थी, तो environmental racism नजर आता है अमेरिका में। Elon Musk के major data centers जो हैं, वो certain communities में हैं, जहाँ पे immigrants हैं वगैरह, and इनको disproportionately ज़्यादा harm हो रहा है. Same way, I did this little project जिसमें we were trying to find कि AI जब diagnose करता है चीजें, so there's a bias because there's a bias in the data provided because there's been more research done to certain communities. For example, अगर skin disease है, cancer disease है, उसका research जो है वो, for example, white लोगों का light skin लोगों के ऊपर ज़्यादा research हुआ है as opposed to South Asian लोगों के ऊपर symptoms कैसे होते हैं. So the AI reflects that bias. And also अभी अमेरिका में उन्होंने जो big beautiful bill pass हुआ है, उसमें 10-year moratorium लग गया है on passing regulations on it. So seemingly I can't see कि government या कोई भी किसी चीज को इसको regulate करे. It's just like a moving train, and you have to get on, you have to jump off, and if you're in the way, you get crushed under it. So as students, अगर हम लोग करें, अगर हम SDG या sustainable application कर रहे हैं,
So apart from AI, how do we train ourselves, या how do we, with the powers we have, try to ensure कि ये bias अगर हम rely कर रहे हैं pre-perceived data के ऊपर, वो bias हमारे AI models पे echo ना? एक्चुअली जो आपने रियल टाइम इश्यूज की बात की है वो बेसिकली रियलिज्म है आपकी. इट्स अ वेरी गुड थिंग. आइडियलिज्म एक चीज़ होती है और रियलिज्म दूसरी चीज़ होती है, और आपने बहुत रियलिस्टिक की बात की. देखिए, नूर एक बात कर रही थी, नूर के बात के साथ ही मैं आपके आंसर को रैप करता हूँ. एवरीथिंग इज अबाउट प्रॉफिट्स. ओके, एंड द वाइट रेस हैज ए क्लास एज ओवर द वर्ल्ड. एंड आप देखें दुनिया के सिस्टम ऐसे है. The whites, the middle is brown, and Africans or the black race is always been on the bottom. It's not the case all the time, but this is the reality right now. So why it is there? So वो लोग जो कर रहे हैं उसका हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. The research will be done for that, and it's all about the profits. वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एआई में, और एआई उनको अच्छा रिजल्ट दिखा देते हैं कि आप अपनी हेल्थ कैसे बेहतर कर सकते हैं. अब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हमें चैलेंजेस है फाइनेंशियल. हम अपने लिए जितना भी करें, हमारी करप्शन के इश्यूज हैं, वो गवर्नेंस से आते हैं, वो सोशल से आते हैं. हमारे अगेन स्लो स्टेप्स. आप बेसिकली ये सारी चीजें कैसे देखिए, अगर से द मिडल ईस्ट पीपल वर कंसिडर्ड एज ओके Bedouins एंड ओके लेट देम. अब उनको जाहिल समझा जाता था, पार्डन माय लैंग्वेज, बट उनको जाहिल समझा जाता था, ये पढ़े लिखे नहीं है. लेकिन अब उनके पास इतना ऑयल मनी आ गया है कि they can buy AI technologies for themselves. Their medical and healthcare facilities are the top notch in the world. They run the most luxury facilities because they're less on the population as well. So we can't replicate that to us. It's sometimes it's luck as well. Some people inherit, some people inherit financial luxuries. We are all lucky enough to have a middle class or upper middle class background, so we can discuss these things, right? We were born into this. It's similarly the whites are born into the luxury of knowing those things, so हम उनको तो दूर नहीं कर सकते, but what we can do is वो minimum हम अपने लिए जो चीजें बेहतर कर सकते हैं, one by one step after another step after another. More of us will mean next generation will have more of a better future. जितने लोग बड़े होंगे, जैसे वो एक बड़ी easy सी बात है कि if we choose to be weak people, like you must have heard that say, strong men, bring good times, and good times bring weak men bring tough times, and tough times bring strong men. It's a whole cycle. So अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम डिप होते जा रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ, and we need to come out. There have been so much positives in 2025 for Pakistanis, especially on the war side. You must have seen, Pakistan ka image all of a sudden change ho gaya. So we should see the positive things and what has happened. Pakistan ki defense industry ko. I don't want to go into the political dimensions or anything, but the positives. No political discussions. This is So, being recorded. So we wouldn't want to get into any troubles with anywhere, Numan. Just to echo what Numan is saying, Mariam, and who was it before Mariam who had asked the question about funds? Shayan. Yeah. Excellent questions, both of you. One thing that I really want you to understand is that, again, when we say that it's about taking baby steps and setting a startup from scratch, firstly, जब हम बात करते हैं opportunity realization की, वो ये है कि have we exhausted all of the open source and all of the free resources that are out there? No, we haven't. The first identity, the first prototyping, and hopefully how I have designed the fellowship with Musfira is for you guys to understand कि जो zero budgeted idea generation है वो कैसे होता है. जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, क्या उसमें पैसे लगते हैं? नहीं लगते. जब आपने कोई आइडिया को अपने बाउंस ऑफ करना होता है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते. जो गोल सेटिंग है उसके बिल्कुल पैसे नहीं लगते. Each task that you're going to do as part of the fellowship, you're going to understand and realize that, oh, this was something that did not cost me anything. I was able to find resources. I was able to use AI to find these resources all across the place. So you Sorry can guys, somebody's mic is unmuted. Sorry, I don't know. You can ये मेरे ही ऑफिस में लोग बैठे हैं, इनको मैं भी जरा घुरी देती हूँ. अच्छा, sorry. So you're gonna look at ideas and find your own identity. How the money comes, Shayan, you'll have to get in touch with me, because then I'll be able to guide you where the money is sitting,
where is the pocket of money lying with. But first, I need Shayan to own up something which he can say that, okay, I'm the founder and CEO of this particular initiative, ma'am. Okay, so we'll have the money discussions too, hopefully towards the end. Go ahead, Ibrahim. You can continue. सर, तो मेरा जो सवाल है वो SDGs से रिलेटेड है कि आपने एग्रीकल्चर की बात की थी कि हम उसको भी मतलब AI के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जिस तरह पाकिस्तान है जहाँ रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं, तो उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनके पास ये सारी एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि उन्हें बचपन से ही इस काम में लगा दिए जाते हैं। तो इन तरह की कंट्रीज़ में हम AI को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो हमें हेल्प करें वो एग्रीकल्चर और सिंपल आंसर है, वो बहुत सिंपल आंसर है कि वो हमने करना है। जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से somebody has to go into that industry and work, and then जिस तरह क्या मिसाल के तौर पे हमारी फैमिलीज में अब there are certain people in Pakistan who are like huge agriculturists. They invest that money, they create opportunities for themselves and also let the other people use that opportunity. That's pretty much it. I hope that makes sense. Yeah, Noor? Okay, so Fajr, you may ask. इब्राहिम का क्वेश्चन का एक और भी एलिमेंट है, वो ये है कि देखें, इकोनॉमीज डेवलप व्हेन द रूरल कन्वर्ट्स टू द अर्बन। जी जी। ओके, अर्बन मजीद अर्बन में नहीं जा सकता। Just a simple question, next time you are off to your villages, those of you who have villages, right, just go ahead and look in households, और वहां पे जाके आप थोड़ा सा देखिएगा कि बिजली नहीं आ रही होगी, मगर एक फोन जरूर होगा जिसके ऊपर एक्सेस टू फेसबुक या यूट्यूब या टिकटॉक होगा। टिकटॉक तो फॉर श्योर ही होगा, if nothing else, right? That is and also look at some of the same usage and the 4G network uses statistics of the country. आपको PTA की वेबसाइट से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन की वेबसाइट से ये सारे स्टैट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे कि हम उनको अपने तरफ से देखते हैं कि मे बी दे आर नॉट अडॉप्टेबल एंड एडवांस्ड, बट जहां आप उनको प्रॉफिटेबिलिटी एक फार्मर को दिखा देते हैं ना, तो वो उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी होता है। So you guys जी are जी। gonna absolutely वो solve this इकोनॉमी ऑफ problem. स्केल बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। Yes. Fajr, you can unmute and ask. So I actually have two questions. The first question is, shouldn't we develop AI through global collaboration in a way where it will use less resources and will be more effective? And my second question is, aren't Absolutely. we, Absolutely, yes. yeah. My Yeah. second question is, aren't we moving too fast in developing AI without understanding its long-term consequence? Because like Elon Musk, and also the co-founder of Apple, they've signed a letter in which we should, slow the I development totally get it process. again. ये ऐसा प्रोसेस है। देखिए, कोई चीजें होती हैं आपको अभी आंसर देखिए, कुछ चीजों का रिटर्न आंसर तब होता है किसी वॉर का इम्पैक्ट होता है, वो 50 साल बाद पता चलता है। कुछ इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि लॉस ऑफ लाइफ होता है। कुछ टाइम के बाद उसके बाद आपको पता चलता है आपकी इकोनॉमी हिट हुई। इकोनॉमी के बाद अगली जनरेशन जो हैं वो पीछे रह गई या वो आगे चली गई। जापान के केस में वो आगे चली गई। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हम डिसाइड करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि येस इट माइट लेट, अभी जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग फोन यूज करना शुरू किया, जैसे बेस्ट एग्जांपल इज द जेन जी, जेन एक्स एंड व्हाटएवर जनरेशंस, आई समटाइम्स वी गेट मिक्स्ड अप विद देम। सो आप लोगों को हमसे ज्यादा एज है ऑन टेक्नोलॉजी। बिफोर हमारे पेरेंट्स को हमें उनसे ज़्यादा था। मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी। तो व्हाट हैपेंस इज के उसका इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव है, जैसे बच्चे जो उनसे टोटल मशीन पे चले गए, मशीन्स पे चले गए, दे डोंट इंटरेक्ट मच, और वी ऑल ऑफ अस वी सिटिंग एज अ फैमिली इन ऑल दीज थिंग्स। सो इम्पैक्ट इज गुड एंड बैड। देयर इज अदर साइड इज के टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, वी नो द इंफॉर्मेशन, वी नो एवरीथिंग, वी आर वेल इन्फॉर्म्ड, वी कैन डू फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। सो ऑल दीज थिंग्स हैव फ्लिप साइड्स टू एवरीथिंग। Yes, too fast, and yes, we should invest with some other people, and if we can get that investment, and this is how the collaboration works. When you go into the right atmosphere, you get the right opportunities. Now, obviously you have to make the right steps. Some people get lucky, first break they make millions, and some people work much harder and smarter but they don't make millions. So it's never about the money, but it's also about the money. So it depends on where we stand. So obviously AI का impact तो क्या पता थोड़े दिन बाद disastrous ही हो, so you are right, but you never know, it might help us change the world.
for good as well. So again, I Yes. think Shayan has Shayan? another question. Yes, Shayan, go ahead. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द प्रीवियस क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि मैंने पूछा क्यों था। बिकॉज बिफोर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड मैंने उसे पिच किया था काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आई फेल टू सिक्योर एनी फंड्स, तो उस वजह से वो ड्रॉप हो गया था। मैंने प्रोटोटाइप बनाया था। आई वांट टू आस्क स्पेसिफिकली कोई इस तरह के प्रोग्राम्स, कोई इस तरह के लाइक यूनाइटेड नेशन की कोई फंडिंग, यूएनओ वगैरह या WHO, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई फंड्स वगैरह, लाइक आई डोंट नो अबाउट ऑपरेशनल साइड पे मैं इसका जवाब दूंगा। जो आपने दूसरी फंडिंग की, जो अपॉर्चुनिटी की बात की, वो नूर को ज़्यादा पता होंगे, मेरी वो उतनी स्किल सेट नहीं है। मैं जो आपकी बात पे मैं टोटली एग्री। अब आप दुनिया में बेस्ट प्रोफेशनल और बेस्ट सोल्यूशन भी बनाओगे, बट देयर हैज़ टू बी इंटरेस्ट, राइट? अब जो लोग इंटरेस्ट लेंगे, अगर आपके बेस्ट भी है, दे वुडंट वांट टू लेट यू हैव दैट सोल्यूशन टू कम आउट इन द प्ले। लाइक जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जो सारी दुनिया में लोगों की बीमारी, ऐसी कोई दवाई आ जाए जो सारी दुनिया की कैंसर्स को इलाज करती है, तो मेडिकल फार्मा तो नहीं चाहेगी कि वो दवाई आए। Similarly, आपका it not necessarily, but if we are doing innovation, somebody would be interested. If we are even telling the right solution कि यार कल को दीवार गिरेगी और आप नीचे आके मर जाओगे, लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं है, तो it's the same kind of environment. वो फिर वही आगे आप किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह बात करें। You are right. You might have gone to the right place and everything, but again, it's sometimes the luck, sometimes it's the right organization, sometimes the right connections. तो आगे opportunities जो है वो नूर explain करेंगे। Shayan, answer this. How many pitches have you done so far? I've had like 3 so far, 3 pitches. Okay, super. ठीक है, सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना, ठीक है, जो भी मैं पूछ रही हूँ। आपके प्रोटोटाइप की प्रेजेंस क्या है डिजिटल? It's an MVP. MVP तो है, वेबसाइट है? Obviously उसकी नहीं वेब नहीं, वर्जन, यस नो बोलो। यस यस नो बोलो। वेबसाइट है। वेबसाइट है, ठीक है। अलग फंक्शनल वेबसाइट नहीं है, हाँ। इट्स नॉट एन सेपरेट वेबसाइट, लेकिन वेब पे वो काम कर सकता है। दे आर लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक हगिंग फेस, स्ट्रीमलेट, उनको यूज करके मैंने प्रोटोटाइप बनाया है। लाइक दे आर द फ्री प्रोटोटाइप बना हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ शयान ने, मैं बायर हूँ, मुझे आपसे प्रोटोटाइप आपकी समझ आ गया, ठीक है, मैं आपकी MVP पे सोल्ड हूँ। अब मुझे आपके प्रूफ पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। प्रूफ पॉइंट ये करने हैं कि ABC आपका प्रोटोटाइप है, आपका सोल्यूशन है। डू यू हैव अ वेबसाइट प्रेजेंस? यस नो बताओ। टूल नहीं यूज किया, वेबसाइट, प्रोडक्ट की, सर्विस की, वेबसाइट। Yes, there's a website. Okay, there's a website. Is there a social media presence? No, Okay. social media presence Have you for that calculated project. For एक the वर्ड का जवाब देना, ठीक है। ये पिच करी, ठीक है। इस वक्त ये शार्क टैंक की पिच हो रही है। You are answering questions. Do you have a proof point of the potential impact that you have assessed with people? I guess there is. नहीं, प्रूफ, कोई इम्पैक्ट, कितने स्टेक होल्डर्स, कितने लोग, कितने लोगों पे Trial, आपने जिसको कहते हैं MVP trial. ट्राई किए? 5 जी। ट्रायल, 10, 1, 2 नंबर, क्वांटिफाइबल नंबर। कह दो नो। इफ यू से नो देन यू लर्न मोर। I have a data set जिसमें 50,000 लोगों का MRI का डाटा उसमें है, so it's a ठीक lot है, of data. excellent. How many people have you spoken who have done the MRI testing? You yourself, and you have gone and you have showed a real MVP to them and how it's gonna affect them. But bolo many no. people? If you say no, that means it doesn't mean that your MVP is bad. Okay? Where I'm trying to take you is with these questions. I'll tell you what went wrong, right? And you're gonna do this as part of this task 2 of this fellowship. On purpose. On purpose. I have added the design thinking methodology. Because मैं Right. चाहती हूँ कि आपका जो दिमाग उसके अंदर है, हम बात तो करते हैं ना, ये हम क्या है यार उसका नाम, बिल गेट्स की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स, मरहूम की बात करते हैं, इलॉन मस्क की बात करते हैं। Their products and their solutions are coming at the back end with a human centered design iterative process. अगर आपने वो चीज मुझे बताई नहीं, ठीक है, अगर आपने मुझे ये कहा नहीं कि मेरा जो हार्ट में कोई इशू है
और मेरा अगर MRI होएगा तो फिर मुझे उससे क्या बेनिफिट होगा, तो फिर मैं अगली दफा अस्पताल जाके डॉक्टर से पूछूंगी कि भाई ये वाली सोल्यूशन है या नहीं है, right? So it has to come with that function where you are actually connecting the dots and understanding कि आपके पास ये data set जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, I'll tell you how, is what we need to assess. Pitches are done based on what your outlook and how big a brand you have developed for yourself. अगर आपको एक वाली चीज, ₹1 की चीज को ₹100 में बेचना नहीं आता, ठीक है, दैट इज वेयर पिचेस डोंट वर्क. शार्क टैंक पाकिस्तान देखा था? कंट्रोवर्सी देखा है। पता है? 30 ऑफर्स आई थी, 4 फंड हुए हैं. और वो भी जो फंड हुए हैं आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, इसलिए 4 फंड हुए हैं बिकॉज उनके पीछे बातें बड़ी अच्छी थी, पिच बहुत अच्छी थी, ऑफर मिल भी गई टीवी के लिए, बट ड्यू डिलिजेंस में आके उनके पास इनफ प्रूफ पॉइंट्स नहीं थे कि ये वाकई में इतना रेवेन्यू एक चीज कमा रही है या नहीं कमा रही. तो आपका इस वक्त टास्क as a young entrepreneur, as somebody who's working on an MVP, is to collect as much proof points for yourself, as much social media noise for yourself, as much sounding boards for yourself as possible. And hopefully, inshallah, we'll be able to connect the dots. Maybe if not in this fellowship, then maybe in another fellowship. And you'd be able to understand कि मैं इसको multiplier effect branding का कैसे दे सकता हूँ. Pockets of funding है. मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पास भी है, NCAI के पास भी इंक्यूबेशन है, आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास भी है, UNDP के पास भी बहुत सारे हैं, यूनेस्को के पास भी हैं, UNHCR के पास भी हैं. बट आपको उस लेवल तक जाने के लिए pitch, and then we'll share how the funding is done. Right, thank you very much. And also very important point is proof of concept, which actually Noor is saying is हर चीज का concept का proof आपको देना बहुत जरूरी है. हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो मूसा, go ahead, and there are a few other questions as well. Yeah, my question is related to his, where I've been to a few pitches. This one in particular, we were pitching a device in agriculture that basically uses AI to test soil quality, etc. Right? So we hadn't had the chance to go and test it out, so we just used projections to showcase se kya hoga crop yield वगैरह and stuff. So how do people receive projections when they are being pitched? That's my question. Extremely important. That is the whole end goal. आपको कोई भी ग्रांट फंड अगर मिल रहा है, इक्विटी फंडिंग मिल रही है, किसी भी किस्म की VC के पास भी अगर आप चले जाएंगे, वो आपसे पूछेगा ही ये कि मैं आपको ग्रांट पे नहीं पूछेगा. ग्रांट में आपको एक छोटा सा एक स्टीरॉइड का इंजेक्शन लग जाएगा और आप कहेंगे यार है पैसे आ गए हैं मूसा, नाउ आई कैन लेके थोड़ी सी पार्टी करता हूँ ना, बर्गर शर्गर खाता हूँ. फिर उसके बाद you'll say कि okay, now I have to invest into the startup. Projections, financials are the absolute most important where you can go there. But the proof of concept, like Numan was saying, what you have to sell is super important for you, right? ये जो connection या जो आप networking कर रहे हैं ना, now I'm like, I'm really inquisitive to know कि शायान का MRI MVP क्या है. And Musa, I'm really excited to know, okay, what is your project on soil testing, and have you tested it? Have you tested it after? खुद चले जाओ भाई, अभी इतने फ्लैश फ्लड्स आए हैं, आप जाके वहां पे किसी रेजिडेंशियल अपने घर के पास जाके चेक करें कि what is the soil testing like, document it. Go to a space where you think that people can be affected from it. I'm just thinking, Zainab and Musfara are here. We have recently done in our other fellowship session with somebody who's developing all a biofertilizer. And she is sitting on lots and lots of grant fundings. She's doing a PhD in that particular domain in the UK. और उसने बिल्डअप किया है वो इकोसिस्टम उसी एक MVP के ऊपर.
मगर आप जब उसका प्रूफ कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फार्मर्स के पास भी गई हुई है, वो बैठी भी हुई है फील्ड्स में खुद और खुद काम कर रही है. So it's a lot of that amounts to it. So I Yeah. hope that answers your questions, Musa Yeah. and Shayam. सिंपल वर्ड्स Yeah. में पैसा कमाना अगर किसी भी चीज में है ना, पैसा किसी से निकालना और कमाना, it takes years, months. You know, we work 30 days for 22 days, maybe 26 days a month, and then we get a small amount. And imagine अगर आपको कोई भी अपनी जेब से पैसा देगा, उसके लिए वो कितना कुछ मांगेगा आपसे कि यार मुझे ये भी करके दिखाओ, अच्छा फिर ये भी करके दिखाओ. आप किसी को सेल करो ना, मैं तो 20 साल से सेल्स कर रहा हूँ, पूरा कुछ मानने के बाद भी लोग बैक ऑफ कर जाते हैं. सो जो नूर बात कर रही थी आगे शार्क टैंक की, तो वो कितनी ऑफर्स लगी और उसमें से 4 लोगों ने बाद में फंडिंग की बस ली. दैट शोज के स्पेंडिंग मनी ऑन समबडी इज, no matter how good thing you do, it's not necessarily other person will understand. हम जितने मर्जी अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन और बल्कि जितनी अच्छी भी प्रोडक्ट कर लें, बट we might be the nicest people or doing the nicest solution or the best solution possible, but it won't necessarily translate into the money. So it's not that I'm trying to detract, but it is where your right contacts come in. जिनके right contacts हैं वो बहुत ज़्यादा लोग ही बिल गेट्स वगैरह के नाम के साथ बहुत सारी मीम्स आती हैं. The best memes are कि यार वो मैं अपने पाप की वेल्थ नहीं इनहेरिट की, उनके कॉन्टेक्ट्स इनहेरिट किए. तो इसमें बहुत सारी बात आप राइट को क्राउड को दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा पा रहे हो, जिनका कोई इंटरेस्ट. अब आप एक किसी 2-4 ऐसे क्लाइंट्स को दिखा रहे हो हु आर लिटिल बिट ऑफ नट जॉब्स, एंड यू आर थिंकिंग कि यार उनको हमने बेचा तो यू आर गेटिंग डिमोरलाइज, यार छोड़ो इसको, सबको छोड़ो. यू शुड कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड कीप बैंगिंग हार्ड. स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने कितने फेलियर्स के बाद, या वो अमेजोन वाले का क्या नाम है, उन लोगों ने छोटी छोटी जिस तरह की चीजों से स्टार्ट किया, दे एंडेड अप बीइंग इन अ लॉट ऑफ वेज, और बहुत सारी जंगें लड़नी पड़ती हैं. But that's where my concern is, which I shared with everyone in the orientation. Okay, we have wrong examples, right? जी. Me and Naman and our generation are sharing the wrong examples with you. What we need to share is, somebody sitting in Sargodha and running a fantastic startup and making money. Somebody sitting in Gilgit and running with the internet connectivity issues, still running the second biggest BPO in Pakistan. That is the kind of stories that we need to talk about more. There are 2 questions. We're sorry we're running about time, but there are 2 questions, Naman, that I like you to answer. So there's one from Chahat. As the world is moving towards technology more and more, AI will be more common to each and everyone. So won't the people be totally dependent on AI rather than being creative because of the environmental changes? And then there is another one which is clubbed with this, is that can AI solve global inequality, because it is also increasing with increasing. So Naman, your again, it's to be known, they are creating the tools, biases हटा के कर रहे हैं, ethics create करके की जा रही हैं. अब वो जो ऑटोनॉमी पे आके अगर वो अपनी मर्जी से डिसीजन करना शुरू कर दे, वो एज ऑफ अल्ट्रा ना आ जाए, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अपनी मर्जी से हम सबको एलिमिनेट करने वाली जगह पे. बट आई फील लाइक इट इज फॉर नाउ, इट इज ऑन अ गुड पाथ, इट विल नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और वो इनइक्वालिटी देखिए, फिर मैं ये बात करूंगा कि हमें भी अब एआई यूज करने की अपॉर्चुनिटी है. पाकिस्तानी इसको रियल टेक, जैसे ही एआई दुनिया में आया, हमें भी यूज करने का, हाँ एडवांस लेवल्स तो हम नहीं यूज करे, वो मशीन लर्निंग के वो मॉडल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे मॉडल्स, अगेन डीप सीक से देख लीजिए, चाइना की एक छोटी सी कंपनी ने कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एक दिन में $1 ट्रिलियन का लॉस दे दिया. तो एंड इफ यू वर्क विद डीप सीक, अगर किसी ने भी लेवरेज किया डीप सीक को, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन बी. मैं बहुत ही अमेज होता हूँ उसको देख के. तो सिमिलरली इतना अच्छा उसका प्रोसेस है कि इट्स लाइक म्यूजिक फॉर मी. आई रियली एंजॉय एवरीथिंग व्हाट डीप सीक्स डन्स. वो आपकी एनालिसिस देख करने की भी स्किल होगी तो आपको पता चलेगा कि एआई कैन डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर द वर्ल्ड एज वेल. मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ. यस, आइडियलिज्म भी एक चीज है, लेकिन ऑब्वियसली रियलिज्म भी होनी चाहिए. वो फिर वही बात आ गई कि वो पॉलिटिकल डोमेन हो जाती है, तो आई वुडंट गो इनटू दोस थिंग्स. इट कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ हार्म्स. तो नहीं, मैं लोकली पॉलिटिकल नहीं कह रहा, बट इट कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ हार्म. ऑब्वियसली पोटेंशियल तो वही है कि हम इंसान जो भी चीज करते हैं साथ में उसका कोई डिस्ट्रक्टिव पहलू होता है. लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, थिंग्स वुड बी फाइन. वो पॉजिटिव साइड है.
बट हमें वो भी होना चाहिए कि अपने कदम फूंक फूंक के भी रखने हैं कि वी डोंट रिलाई टोटली ऑन दैट, क्रिएटिविटी को छोड़ के यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। एंड इंसान को जैसे कहते हैं कि जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए, स्ट्रांग भी होना चाहिए, आर्टिस्टिक टच भी होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी देयर। क्रिएटिविटी पे भी आप अपनी जितनी चीजें बना सकते हैं। देखिए ऑटोमेशन में मेरी बेटी है, शी क्रिएट्स एडवांस किस्म की एनिमेशंस बनाती है, लेकिन अब उनकी जरूरत ही नहीं रही, मशीन्स खुद ही बना लेती हैं वो चीजें। सॉफ्टवेयर बनाने, अब सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे टाइम पे टांगे चलते थे, गाड़ियां आ गई, वो टांगे वाले खत्म हो गए। अब यू कीप ऑन लर्निंग। एंड कितने बिजनेस हैं जो बुक्स, रिसेंटली इस्लामाबाद में एक बुक शॉप क्लोज हुई बड़ी फेमस। अब उन्होंने इनोवेशन में नहीं काम किया, वो नहीं चल सके। अब वो बुक्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो यू कैन नेवर टेक अ कॉल ऑन समथिंग व्हिच इज स्टिल ऑन अ डेवलपिंग स्टेज। तो हम सबको ही देखना है, वेट एंड सी। आप भी हमारे साथ हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं। Yes, thank you so much, Sir Numan. It's pleasure to have you again. It's only 9:37. I'm just loving the discussion, but we need to end this, and I'm just loving it. Yes. Just want everyone to please open their cameras. We're gonna take 1 second to please click the group pictures. Yes. And while you're doing it, you guys, Anuman, thank you so much. I think we'd bother you some more as well. Sure, anytime. To come in on board. And towards the end, we do have a pitching session, a draft pitching session. So Shayan ki pitch bhi nazar aa jayegi, Musa ki bhi aa jayegi, baki sab ki bhi aa jayegi. So I'm really excited to see that, I have one potentially. feedback here on the session, just one feed. I feel like this batch or this whatever network you've created is much advanced versus the last one. Probably they were much younger kids, and the kids here are much more advanced, and their opinions are much more Please better. don't So I say that. really, That was an international collaboration that hopefully these guys would be going around too. But that was Yeah, the yeah. whole goal, that where Yeah, can yeah. we take them and incubate the whole fellows a little bit more and send them to the war field a little bit more mature. So go ahead, you guys. It's good to see you, everyone. More pictures, more people, cameras. There are 29 of us and there are very few pictures. Sorry, faces. You can also create your avatars like Musfara has created hers. Just reach out to her how she's done hers. There you go. She's trying to open her avatar. So feel free, those of you who want to open up the avatars. And I then just can't open it right now because I have logged in it from technology. down. Yeah. Technology. See, dependable. All right, here we go. 3, 2, 1. And yes, done. Noman, Done. thank you so much. This was just the Yeah. first one, and we have a series now. When is the next capacity building session? We have session tomorrow. Tomorrow. Yeah, And I'm really excited. wonderful. Yeah. Thank you so much, Noman. We'll inshallah see you very soon. Thank you, Noor. Thank you It's for a taking pleasure. out your time. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Thank everyone. you, everybody. We will be back in the community group. We'll get the picture there in a bit. But thank you so much for joining in. We'll Thank see you so much, tomorrow. everyone. Yes, Thank you, guys. bye-bye. Bye-bye. Hafiz.